Shri Namdev. Good evening to you all, or good morning to those of you who are joining from the US. My name is Rocky Voria. I have the pleasure of kicking off today's event. I'm Purnima Voria's youngest daughter. I'm based in New York City. I lead a global digital sales development team at IBM. So within my organization, I have about 350 sellers who are helping companies all over the world, including India, achieve their business goals using technology. So I've met some of you before. This is my third webinar. As many of you heard, today's my mom's birthday. So we wanted to start by saying a few words, but before I do that, I'm going to play a quick video that was made by someone in our community. Actually, Aru, Nama, and Manju Multani. Yes. Okay. Wow, happy birthday to you. Thank you. Wonderful. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you, Mr. and Mrs. Manju Multani and Aru Multani and the entire Namdev community. So I wanted to just, before we kick off the actual event, take a moment to wish my mom happy birthday. She's been a strong inspiration to me and also to my older sisters, having raised us alone. And as you can probably tell, she's constantly putting service above self. I think the fact that she's starting her birthday at 7:30 a.m. her time, leading this webinar, demonstrates her commitment to the community and her passion for building bridges. And I'm so grateful for the values that you've instilled in me, Mom. I recently published an article in Forbes on the lessons that she taught me, so I can share that with this community on our Facebook page. But we also have a very special surprise. Not only did I want to wish you, Mom, but my two sisters wanted to personally wish you also. So although we can't be with you today, we're with you virtually, and we wanted to start our days from each of the corners of the country wishing you a happy birthday. So I'll pass it over to my oldest sister, Pooja. Hi, Mom. Happy birthday. Thank you, Beta. Jai Shri Namdev. Namaste to everybody. Thank you all for being here and being a part of the webinar and celebrating my mom's birthday as well. We wanted to thank you, Mom, from the bottom of our heart for everything that you've done for us. You've made so many sacrifices for our family, and I am here because of you. You know, now I'm a doctor because of everything you've inspired me to do. I received my MBA because of you. And now I'm leading my department in radiology in the largest radiology group throughout the country. So it's all because of you, and baby Arn and Arya are very lucky to have you as their grandma as well. So you can say hi to Nani Sab. Baby Arn is awake already. So Baby Arun, thank you. yeah, here he is. So bringing tears to my eyes. So we just wanted to thank you and let you know that we love you, and we wanted to wish you a happy birthday on this very special day. Thank you. Thank you, Vita. And one last, we have Anjali Voria from Denver. Happy birthday, Mom. We're so very excited to be with you this morning. I can't even begin to explain what an inspiration you've been in our lives. I 100% echo everything that Pooja and Rocky said. You are truly what has made us successful women. My ability to be within the finance and the investor relations lead at an oil and gas company, two disciplines that are very male dominated, is because you've taught us how to be the strong women that we are, which is something I think that is so critical in our community. You've always been doing things like that, and a great inspiration, someone to look up to.
I saw you at an early age negotiating and influencing and persuading people at the highest levels, and now I use that every day in my career. So those are the things that make us, look that made us strong. Thank you so much for everything, and we love you. Happy birthday. Thank you very much. Thank you very much. Blessings to all three of you. And Dr. Mule, I don't see you. You're there. Okay. Before we begin, I would like to say speedy recovery to my son, my friend, our attorney, Nishant Mandwara. He went through a little crisis in life recently. बेटा बहुत जल्दी अच्छे हो जाओ तुम, यही सारी समाज यही कामना कर रहा है तुम्हारे लिए. You always serve the community, and but I don't want to steal the thunder away from Dr. Mule. He is the pride of the community, so I want to go ahead and get started. And as you know, that this webinar is Stitching the World Community to Continents, New Frontiers and New Direction. And today I'm hoping Muleji will give us a lot of wisdom, and we all need to seek that from him, because our community needs to move forward, not slowly. Now it's time to do this rapidly. So in this webinar, we'll be exploring the extraordinary journey of a poet, thought leader, and people's ambassador, and into various countries and continents. In his keynote, Ambassador Dhyaneshwar Muleji will advise us on how we can share ideas to be bold, breaking barriers, futuristic approaches, and how to innovatively with ideas move the community forward. He will also share with us today the NITO 5-year plan. I cannot not introduce him with his full credentials, so please bear with me. Muleji said to me that foreign service was my home for over 35 years. It made me what I have become today. A diplomat is definitely a different kind of soldier who protects the interest of motherland with words, wit, and wisdom. And I have personally experienced that with Muleji. I just have to ask, and he delivers. Dhyaneshwar Muleji was appointed head of Interministerial Committee to connect PIO, NRI, scientific and academic community with India. This is a recent accomplishment. So if we can give a round of applause to him, please, all of you, just greet him with this new role. Council of Scientific and Industrial Research has constituted an interministerial working group to work towards development of a single national portal titled Pravasi Bharatiya Academic and Scientific Sampark, Prabhas, under the chairmanship of Dr. Dhyaneshwar Mule, a member of National Human Rights Commission, India, and a former career diplomat. For those of you who don't know, Dhyaneshwar Muleji was Consul General of India in New York. Prabhas would work towards effectively engaging the global SNT community for enriching the Indian innovation ecosystem, for networking with them. Researchers, institutions provide policy guidelines, establish and launch joint collaborative programs and schemes, etc. This sort of initiative is first of a kind to tap the expertise of overseas Indians for India. This is in alignment with the Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. Along with the chairmanship, Dr. Mule, Prabhas is constituted with eminent officers that are going to be included in this committee. With his vast experience, valuable insight from a long service in the Ministry of External Affairs, Dr. Dhyaneshwar Muleji would be able to guide this high-level committee to bridge the gap between overseas Indians and India. So I think we are very fortunate, the NRIs living abroad all across the continents, that Muleji is assigned, and what a wonderful thing to have Muleji as our Namdev community members. So I am very grateful, Muleji, that you accepted my invitation and you graciously
said that it will be an honor to serve our community. And I think you are also a role model for our community, from starting from nothing to becoming a diplomat of the world is not a joke. And I personally know that because all across the world, we hear great things about you. Everybody's very proud of you. But I especially want to say, I am very proud of you, and I welcome you on behalf of the Namdev community, on behalf of National US India Chamber of Commerce, and also on behalf of Namdev International Trade Organization. बहुत बहुत स्वागत है मूले जी आपका. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जब बुलाया तो वो गाना है ना, आपने बुलाया और हम चले आए. ये तो गा के बताना पड़ेगा फिर आपको. तुमने You put your foot in the mouth. तो कोई चॉइस नहीं था मेरे पास. मैं आने बट बात ये भी है कि मैं जरूर कहूँगा कि 35 साल के विदेश सेवा के बाद मुझे महसूस होता है कि मैंने वैसे बहुत कम्युनिटी के लिए, नामदेव कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया, कम्युनिटी के लिए बहुत किया. जहाँ गया वहाँ कम्युनिटी के लिए काम किया, लेकिन स्पेसिफिकली और आपने मुझे मौका दिया. मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि पूरे विश्व के और भारत के नामदेव कम्युनिटी के साथ मेरा ये पहला संवाद है. आपने ये मुझे मौका दिया है, तो मैं जरूर चाहूँगा कि ये संवाद सफल हो और हमारे कम्युनिटी के लोगों के साथ भी मेरा अच्छा संवाद रहे, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं कम्युनिटी के बाहर के लोगों की ही सेवा करता रहूं. अगर पूरा संत ज्ञानेश्वर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, विश्वची माझे घर. संत ज्ञानेश्वर भी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, जैसे नामदेव जी थे. हाँ जी. तो ये पूरा विश्व हमारा घर है और हर कम्युनिटी हमारी है, और जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ उसके लिए भी कुछ करने का भाग्य मुझे मिलता है, तो मैं अपने आप को और भी भाग्यशाली समझूंगा. तो इसलिए आपने बुलाया और हम चले आए. I'm very happy and delighted to be here, and I would certainly like to work with the community members more in future. और ये तो आपने मेरे को बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट दे दिया आज, क्योंकि मैं अब आपको वॉलंटियर कर रही हूँ अपने नामदेव इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल एडवाइजर. आप बनिए और हमारा मार्गदर्शन करिए, और आप करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा. बिल्कुल बिल्कुल. आप वो कहते हैं दूसरा गाना याद आता है, तू जहाँ जहाँ चलेगा, मैं म्यूजिक की बहुत शौकीन हूँ, मेरा साया साथ होगा. तो उसी तरह से आप जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग, मैं व्यक्तिगत तरीके से बिल्कुल आनंद से ज्वाइन हो जाऊंगा, और जो कुछ कर सकता हूँ मेरे हाथ में है, बिल्कुल बढ़िया करेंगे हम लोग. बिल्कुल. हमारे कम्युनिटी और आपका मार्गदर्शन ऐसे ही समाज आगे जाएगा, और ये मेरा एक दृढ़ निश्चय है और मानना भी है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं वैसे भी मैंने एक दृढ़ निश्चय किया जब मैं समाज के सामने आई कि समाज के लिए कुछ कर गुजरना है, और एक बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पे हम हैं वहां से हमें आगे बढ़ना है. और आज आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे इस बारे में. लगता है आपको कहीं से मेरे म्यूजिक के इंटरेस्ट के बारे में पता लग गया, क्योंकि एक के बाद एक. लेकिन अगर आप गाना सुनाते तो हम शायद ज्यादा बर्थडे गिफ्ट हो जाता. लेकिन हमारे ऑडियंस में से कोई भी सुनाना चाहेगा तो हम इस प्रोग्राम के जब अंत होगा तो हम एक सरप्राइज आर्टिस्ट लाएंगे जो कि अपने वेबिनार में ज्वाइन किए हैं आज. और आपके बेटे भी शायद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, यूएस में है वो, तो शायद उन दोनों का मेल करेंगे हम और कुछ फ्यूजन करेंगे इन फ्यूचर. चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा. इससे भी शुरुआत करना चाहती हूँ कि आपने एक मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी शुरू किया है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि पॉजिटिविटी से और सकारात्मक सोच से हमारा समाज बहुत आगे बढ़ सकता है. हम शायद किसी चक्रव्यूह में ही रहते हैं और उसकी वजह से हम स्लो डाउन हो जाते हैं. तो शायद आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो हमारे लोग इस ओर अग्रसर होंगे कि हम कैसे अपने को सशक्त बनाएं और विभिन्न वर्गों में हम एकता लाएं और आगे बढ़ें.
मैं अब अपना प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो हमारे ये म्यूजिक के शौकीन अगर बैठ जाते हैं तो कहाँ बातें कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। तो सही मैं है। चाहती हूँ कि श्रोताओं का, नामदेव समाज के सभी लोग जो आज जुड़ रहे हैं और जो नहीं भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और वैसे भी ये जूम मीटिंग बाद में भी दिखाई जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू करूं, अगर आप इजाजत दें मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, स्वागत है और आपको रूरल सालगिरह का बैकग्राउंड बहुत में, बहुत बधाई। हाँ सर, रूरल बैकग्राउंड में फॉरेन सर्विस है जो आपने की है, और हम लोगों में से बहुत कम लोग हैं, शायद हमारे समाज में कोई भी नहीं है जिसने ये काम किया है। आपका पहला इंप्रेशन क्या था और एक्सपीरियंस कैसा था जब आप सबसे पहले जापान में उतरे? मैं ये कहूँ तो आश्चर्य नहीं होगा आपको कि मैं बिल्कुल, मुझे एक तरह से शॉक लग गया था। अच्छा। एक तो गांव से बहुत मुश्किल से दिल्ली आ पाया था और दिल्ली से अचानक मुझे जापान जाना पड़ा विद इन लेस देन ईयर्स टाइम। तो वहाँ की संस्कृति अलग, वहाँ का माहौल अलग, वहाँ की भाषा अलग, लोग दिखते भी अलग है वहाँ पर, लोगों के तरीके अलग। तो एक तरह से अच्छी चीजों का भी एक शौक होता है। वहाँ की जो अनुशासन है, डिसिप्लिन, वो देख के मैं ताज्जुब रह गया। वहाँ की जो ऑनेस्टी है, लोगों के अंदर इंटेग्रिटी है, वो देख के मैं ताज्जुब रह गया। तो क्योंकि हम जहाँ जिस माहौल से गुजरे हैं यहाँ पर, वहाँ पर हम अलग, मूल्य तो वही है लेकिन अलग तरीके से हमारा व्यवहार होता है, अलग तरीके की भाषा होती है। जैसे कि एक मैं उदाहरण बताता हूँ कि एक बार मेरा बस में किताब खो गई। अच्छा। तो हम वापस होटल में आ गए और किताब खो क्या गई, मैं वहाँ भूल गया एक्चुअली। अच्छा। जब मैं वापस पूरे दिन का काम काज करके वापस अपने होटल आया तो मैंने देखा कि वहाँ होटल पे मैसेज था, वो बस डिपो से, कि आपकी किताब जो है मिली है, वाह। आप यहाँ संपर्क कीजिए। अच्छा। तो मैं उसके बाद वहाँ 2 दिन रहा मैं, और मैंने सोचा कि चलो जब समय मिलेगा तो मैं जाके किताब ले आऊंगा। दूसरे दिन मैं नहीं जा पाया, दूसरे दिन शाम को दोबारा मैसेज था, हाँ जी। और तीसरे दिन भी सुबह मैसेज था, फिर मैं नहीं पिकअप कर पाया। तो मैं जब दोपहर में चेकआउट करने के लिए आया तो मुझे बताया गया कि आपके लिए कोई पार्सल है। तो उन्होंने ये देखा कि ये व्यक्ति आ नहीं रहा है किसी वजह से। तो मैंने तो जापानी दोस्तों को पूछा, ये कैसी क्या बात है, क्या जरूरत थी, मैं तो वैसे इतनी इम्पोर्टेंट किताब तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनको जो चीजें मिलती है इस तरह से, उनका हिसाब रखना पड़ता है बाकायदा, और वो साल के बाद फिर ऑक्शन करते हैं। अच्छा। तो लेकिन उनको रखना पड़ता है वो। तो उससे छुटकारा पाने के लिए तो चाहते हैं कि इसकी है चीज उसको मिले। इसलिए जापान में जो है, आप देखिए बरसात में हजारों लोग अपने छाते मेट्रो में छोड़ जाते हैं, फिर उनका ऑक्शन होता है। अच्छा। अच्छा। तो बहुत ही मतलब इस तरह से छोटी छोटी चीजों से हम बहुत, और उनकी जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है वो भी उनको बड़ा बना देती है। हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा बना देती है। अपने प्रिंसिपल्स के बारे में वो बहुत इनफ्लेक्सिबल रहते। एक बार मैंने रेजर खरीदी दाढ़ी की शेविंग की, और उनको मैंने कहा कि ऐसे ही दे दी मुझे क्योंकि अभी यूज करना है। तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हमें पैक करना ही है, पैक करके ही देना है उसको। मैंने कहा अभी जो चीज यूज करनी है, तो मैंने कहा उन्होंने कहा हमारे अधिकार में नहीं है। अच्छा। हम जैसे रूल है वैसे ही दे देंगे। मैंने कहा मैनेजर को बुलाइए। तो उन्होंने मैनेजर को बुलाया, तो मैनेजर ने कहा कि ये प्रोटोकॉल है। तो बाद में मुझे समझ आया कि अगर आपने वो अनपैक्ड चीज बाहर जाते समय किसी ने देखा तो आपको सिक्योरिटी गार्ड शायद रोक देगा, और वो उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो प्रोटोकॉल से बाहर वहाँ हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। इंडिविजुअल सोचता है कि चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी बड़ी छोटी बड़ी सारी शॉकिंग चीजें थी मेरे लिए, और उसी से एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था उसमें। और मैं समझता हूँ कि अगर कुछ अच्छी चीजें मेरे में है, मुझ में है, तो एक उसका बहुत बड़ा श्रेय या क्रेडिट जापान को चला जाता है। क्योंकि पहली मेरी विदेश यात्रा वहीं पे थी और मैं करीबन 4 साल वहाँ रहा। तो उन लोगों को सीखने में उन लोगों की बातें सीखने में एक बहुत मजा भी रहा, और अपने आप को एक बड़ा
एनरिचिंग जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो बेसिकली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जापान वाकई में उसको करता है। और लिविंग विद इंटेग्रिटी, बिल्कुल लाइफ बिल्कुल, विद इंटेग्रिटी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वेरी वेरी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उसके बिना न तो बिजनेस कर सकते हो, न जीवन जी सकते हो, न बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये एक्सपीरियंस सुन के। सबसे अच्छा आपको कौन सा देश लगा और कहाँ आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया वर्क करते हुए? लोग अक्सर ये लोग अक्सर मुझे प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ पर सबसे अच्छा लगा, कौन सा देश अच्छा है। तो मैं उनको ये और ये मेरा एक्सपीरियंस से, अनुभव से आया हुआ एक दृष्टिकोण है कि कोई देश हर चीज में अच्छा और हर चीज में बुरा, ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में। अच्छे से अच्छे देश में भी आपको कुछ ना कुछ दोष आप पाएंगे, अमेरिका हो चाहे जापान हो। और जिसको हम थोड़ी सी बुरी नजर से देखते या समझते कि अरे वो बहुत ही डेंजरस, धोखादायक देश है, वहां भी कुछ अच्छाई आपको नजर आएगी, क्योंकि लोग जो है मूल रूप से एक ही है। हम लोगों अखबारों में सीरिया के बारे में कितना सारा पढ़ते हैं, लेकिन हम जब सीरिया में रहे तो हमने देखा कि वहां के जो लोग हैं वो हमसे इतना प्यार से बर्ताव करते रहे, दोस्ती का हाथ हमेशा आगे करते रहे। हम जब कहीं पर भी जाते थे, देहातों में ड्राइव करते, कहीं एक आध जगह रुक जाते थे, लोग इकट्ठा हो जाते थे और तुरंत चाय के लिए बुलाते थे। अच्छा, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई सीरिया एक मुस्लिम देश है, वहाँ हिंदुस्तान के प्रति ज्यादा उनके पास सम्मान उनके मन में नहीं होगा और पाकिस्तान के प्रति ज्यादा उनको आकर्षण होगा, तो मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान के प्रति उनको पाकिस्तान से भी ज्यादा रिस्पेक्ट है, प्यार है, मोहब्बत है। और उसकी वजह महात्मा गांधी है, उसकी वजह नेहरू जी है, उसकी वजह रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इन लोगों ने जो है वहां पर अपने काम से, नाम से, जैसे महात्मा जी का अहिंसा का संदेश है, उनका जो स्वतंत्रता के लिए काम, उससे वो बहुत प्रभावित लोग हैं। तो हमको इस देश में भी, मतलब सीरिया में भी हमें बहुत अच्छाई लगी। इतिहास से भरा हुआ वो देश है, वहाँ इतने आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। तो मतलब जिसको सीरिया के बारे में इतनी हमें निगेटिव इमेज दिखाई जाती है, वहां पर भी हमें बहुत अच्छाइयाँ पाई। खाने के बहुत शौकीन है वो, खिलाने के बहुत शौकीन है। मैं उनके भी जो बिल्कुल मतलब उनके हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब नहीं। और हमारे और उनकी संस्कृति में बहुत सिमिलैरिटीज है, क्योंकि कई सारे शब्द हमारे यहाँ से वहाँ चले गए, कई शब्द वहां से यहाँ चले आ गए। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बता दूं। वहां पर हम जब खाना खाते थे तो वहां पर कबाब सर्व करते थे, तो उस कबाब को बोलते थे कबाब हिंदी। ठीक है, तो हम पूछते थे इसको कबाब हिंदी क्यों बोलते, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान से कबाब आ गए। और फिर हम दिल्ली में जब हमने महसूस किया था कि दिल्ली में शामी कबाब नाम की एक चीज, तो शाम कबाब में शाम कहाँ से आ गए? ये कृष्ण जी तो नहीं हो सकते, शाम सुबह शाम की वाले वो शाम भी नहीं है। तो शाम क्या है? तो अरेबिक लैंग्वेज में या सीरिया में दमास्कस के आसपास का जो इलाका है उसको शाम बोला जाता है। तो शामी कबाब मतलब वो कबाब जो शाम से आए हैं। तो सीरिया से जो कबाब हमारे यहाँ आए उसको हम बोलते हैं, और वही कबाब है, नाम बदल गए, क्योंकि कबाब का ओरिजिन जो है पर्शियन है, ईरान इराक के आसपास उसका। तो इस तरह से भाषाएं जो है ऐसी एक दूसरे की तरफ चली गई है, उसी तरह से संस्कृति चली गई है। तो ये सब चीजें बड़ी सुंदरता इसमें छुपी है, ऐसा हमें लगा। प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही है, वहाँ डेजर्ट है, मालदीव में समुंदर था, मॉरिशस में भारत के 70% लोग भारतीय है, वहाँ भारत वंश के है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों की सुंदरता और अच्छाई का हमें परिचय। जो उसमें दोष थे, नुक्स थे, उनको हमने छोड़ दिया। रशिया चले गए, रशिया के लोग बहुत ही
हमको उनकी एक स्टैंडर्ड इमेज लगती है, स्टिफ से, बिल्कुल रिजिड से, लेकिन वो बहुत ही दिलदार है, जीवन मस्ती से जीना चाहते हैं, फुल ऑफ लाइफ, एंथुजियाज्म, सिंगिंग, डांसिंग, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब हर देश में सीखने लायक, और वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों भी अद्भुत शहर है, वहाँ की म्यूजियम्स अद्भुत है। तो कोई ऐसे बहुत बुरा या खराब देश करके कोई नहीं है, लोग अच्छे होते हैं हर जगह। कई बार थोड़ी सरकारें अच्छी खराब होती है, लेकिन लोग अंदर से बहुत अच्छे होते हैं सब। सही बात है, आप भी तो बहुत अच्छे हैं मूले जी। नहीं, जहाँ इसलिए कह रही हूँ। एक हमारे पुराण कथाओं में एक तिलोत्तमा करके एक पात्र होता है, नाम भी सुना होगा। तिलोत्तमा जो बनी थी, दुनिया की अच्छी चीजें उसका एक कण कण लेकर तिलोत्तमा को बनाया गया था। क्या बात है। तिल होता है ना, तिल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल तिल समझ। उत्तम, तिल और उत्तम दो शब्दों का मिलन से तिलोत्तमा बनाया। तो ये जो स्त्री, क्या कहते हैं कि ये जो स्त्री बनी थी, तो दुनिया की सब सुंदर चीजों का एक संगम बनाकर उसको बनाया गया था। तो हमारा मन भी वैसे होना चाहिए तिलोत्तमा जैसे, कि वो सही कह रहे हैं, दुनिया की सब अच्छी चीजें, यही हमारी कम्युनिटी हो जाए तो शायद हम दोनों का सपना साकार हो जाए। और शायद सब ये चाहेंगे भी। आपने उन लोगों को, नीतो के श्रोताओं को बताया कि जो लोग कभी हिंदुस्तान से बाहर ही नहीं निकले, तो जो भी आप बातें बता रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि कई लोग अपनी मजबूरी से शायद विदेशों में नहीं जा सकते, और उनके लिए आप घर बैठे सारे एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि वर्ल्ड में कितना प्रेम है, कितना पीस लविंग है, और कहाँ हम कमी है वो भी, इसके बारे में भी वार्तालाप करेंगे। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने सारी दुनिया देखी है, और क्या चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आप सोचते हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए? कैसे, क्या चेंजेस आप एडवाइस करेंगे हिंदुस्तान को? वेल, मैं तो हिंदुस्तान को एडवाइस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि क्या हम करें तो और बेहतर बन जा सकते हैं। देखिए, हमारे दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हाँ जी। और सबसे विशाल है, लेकिन इसको सबसे अच्छा बनाना जरूरी है। मतलब विशाल भी हो और अच्छा भी हो। एक तरह से भारत में बहुत पुराने समय से लोकतंत्र की एक परंपरा रही है। यहाँ पर चर्चा का, विवाद का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, और पूरी अमर्त्य सेन की जो किताब है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, वो इसी के बेसिस पे है कि कैसे हमारे यहाँ पुराने समय से चर्चा का एक रहा है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दिन में जब हम भारत के बारे में सोचते हैं, तो कुछ चीजें जो हम और अच्छे से सीखे और उसको आगे ले चले। हमारे पास बहुत अच्छा संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय या आर्थिक न्याय। लेकिन आम आदमी को अभी भी सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय न्याय नहीं मिलता है। सही बात। आपने देखा है कि माइग्रेंट लेबर के बीच में एक समस्या आई। बिल्कुल। और एक एक इमेज जो है दिल को दहलाने वाली इमेज थी। एक महिला अपने बच्चे को सूटकेस के ऊपर, वो लेटा बच्चा हुआ है और उसको खींच रही है। बहुत दिल दहलता ये। हमारे 16 लोग जो है रेल पटरी पर सोए थे रात में, उनके ऊपर से कार्गो ट्रेन चली गई। एक लड़की अपने पिताजी को, बीमार पिताजी को साइकिल पे बिठा के 1500 किलोमीटर उसने चला के अपने गांव चली गई। तो ये जो कहानी है एक एक, वो दिल को दहलाने वाली इसलिए है कि इसमें हमारे समाज में छिपी हुई, जो सामने नहीं आती है, ऐसे कई सारे दोष जो है उसका प्रतीक है। सही बात। कि अभी भी हम हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय नहीं दे पाए। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, लेकिन पूरे न्यायाधीश नहीं है कोर्ट में, न्यायालयों में। हमारे यहाँ प्रशासन है, लेकिन प्रशासन को और सक्षम बनना जरूरी है, और जवाबदेही बनना, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव बनना बहुत जरूरी है। एफिशिएंट बनना जरूरी है, ट्रांसपेरेंट बनना जरूरी है,
और जो हमारे जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, संसद या स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, वहां आज भी बहुत संख्या में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग अभी भी आ रहे हैं। ये बिल्कुल तो सही। अगर एक व्यक्ति का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो लेजिस्लेचर में आ गया, तो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करेगा, एनकरेज करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, 100% सच। तो इसको मैं क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप कहता हूँ, उसको इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ टॉप टू बॉटम नहीं हो सकता है, इसको ग्रासरूट से भी हमें ऊपर ले जाना जरूरी है। जितना राजा जिम्मेदार होता है, उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि प्रजा को जिम्मेदार। बिल्कुल। तो लोगों में भी हमारे यहाँ इनडिसिप्लिन आई है बहुत सारी। दूसरी बात यह है कि अब लोकतंत्र है, तो लोगों ने मांगने का ही काम शुरू कर दिया है। योगदान करना चाहिए, गिविंग बैक टू द कंट्री, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, गिविंग बैक टू द लेस प्रिविलेज्ड। क्योंकि हम लोग प्रिविलेज है तो हमारे हिस्से का कुछ हम बांट सकते हैं आसानी से। वो एक स्पिरिट उसका जो है वो आना जरूरी है, मैं समझता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। तीसरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। मैंने देखा है कि हर जगह अ थ्रेड ऑफ डिसऑनेस्टी घुस गया है, आ गया है। सही है, बिल्कुल सही है। अगर वो है, आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। लोगों को फैसिलिटेशन होना चाहिए, ना कि रोड़े अटकाए जाए। हाँ जी। तो इसके लिए प्रशासन को कार्यक्षम होना जरूरी है, पारदर्शी होना जरूरी है, और प्रामाणिकता प्रशासन में होनी चाहिए। और आज के दिन में प्रशासन में क्रिएटिविटी या इनोवेटिव नेचर भी प्रशासन का बहुत जरूरी है। तो दीज आर सम ऑफ द रैंडम थॉट्स। और मैं समझता हूँ कि ये अगर हम लाएं तो वास्तव में हमारे देश में बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। सही। और बहुत अच्छे और टैलेंटेड लोग हमारे चारों तरफ, गरीब तबके के लोगों में भी बहुत अच्छे रत्न पाए जाते हैं। उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता, उनको अवसर नहीं मिलता। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ जी। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है आज गरीब को, लेस प्रिविलेज्ड को, रिमोट एरियाज में रहने वाले आदिवासियों को। तो ये हम कर सकते हैं। इसको थोड़ा और जो है टाइटली निट हमारे समाज को बनना जरूरी है। हम और आप जो है उसमें लीड ले सकते हैं। मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि लीडरशिप की बहुत जरूरत होती है, चाहे वो समाज हो चाहे वो बिजनेस हो। सीईओ अगर उसका वो खुद नहीं होगा, अगर इंटेग्रिटी को इसके साथ चलने वाला, तो कंपनी कैसे होगी। तो मैं मानती हूँ कि जो इलेक्शन अभी यूएस में भी हैं और अपने राजस्थान में भी कुछ लोग अपने नामदेव वंशी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये बहुत बड़ी चीज है। सारी बातें आपने जो कही 100% सच है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे दिल में लगती है वो ये है कि criminals should not get a seat to run for election, much less because that's where all the corruption comes. सारा corruption ही वहीं से आता है। अगर आप जो forgive my speech, अगर कोई गुंडागर्दी करते हैं या करप्ट लोग हैं या मर्डरर्स हैं, अब वो लोग अगर आ जाएंगे इलेक्टेड ऑफिशियल बन के, तो वो तो उसको बढ़ावा ही देंगे, क्योंकि उसी में उनकी शक्ति है। तो इस शक्ति को तोड़ सकती है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रजा, हम एक एक इंसान का वोट कीमती है, और अगर हम सब लोग मिल जाएं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, तो ये हो सकता है। बाकी और विषय में मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को निवेदन करूंगी कि प्लीज आपने जो कही है उन बातों पे गौर जरूर फरमा रहे होंगे वो, लेकिन अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, यंग इंडिया है, वो एक रेवोल्यूशन खड़ा कर सकते हैं। इससे पहले कि ऐसा हो, क्यों ना हम अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा दिखा दें मोदी जी के नेतृत्व में, और आप जैसे फॉरेन IFS ऑफिसर्स जो इसको बहुत भली भांति जानते हैं। और आई विल लव टू बी अ वॉइस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू मोदी जी। और अभी जिन्होंने अपने को इंटरप्ट किया था, श्रीमान सुधीर कुमार जी,
उन्होंने 2 किताबें लिखी है मोदी जी पे, तो बहुत सी न्यू इंडिया के बारे में ही उन्होंने मार्गदर्शन किया है, और वो अपने समाज से नहीं है लेकिन आज आए हैं अपने वेबिनार में, तो मुझे बहुत खुशी है उनको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तो है। इसमें एक मैं पूर्णिमा जी कहना चाहूंगा कि हमारी जो निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन हाँ जी, और हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी, दोनों भी इस मुद्दे को, इस बिंदु को बहुत सीरियसली परस्यू कर रहे हैं कि अच्छा, हमारे क्रिमिनल्स जो है, जो कैंडिडेट बनते हैं, उनकी हम्म, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, हाँ उनके जी, डिटेल्स पब्लिक को एडवांस में पता चले। हाँ जी, इसके बारे में काफी अच्छा काम अभी चल रहा है सर्वोच्च हम्म, न्यायालय और निर्वाचन आयोग। ये भी कहना जरूरी है कि एक अच्छा डायरेक्शन में ये चीजें डायरेक्शन भी है। शायद जा और रही है। और हम मैं तो चाहूंगी कि थोड़े यंग लोग इलेक्शन लड़ें, क्योंकि इन लोग की बिल्कुल विचारधारा, हम ये नहीं सोचते कि एक्सपीरियंस से ही सब कुछ होता है। हाँ, एक्सपीरियंस वालों का हाथ सिर पे जरूर रहना चाहिए, लेकिन ये यंग लोग इतने सशक्त हैं और इतने टैलेंटेड हैं कि अगर ये लोग बिल्कुल बागडोर समझेंगे तो ये सफाया तो जरूर करेंगे थोड़ा बहुत तो। और मैं ये समझती हूँ, जो मैं हमेशा से यहाँ पे हिंदुस्तान के बारे में बहुत अच्छी भावना रखती हूँ, लेकिन दिल दुखी होता है जब हम देखते हैं कि हमारी लॉज एनफोर्स क्यों नहीं करी जाती हैं। हमारे कोर्ट में इतने सालों क्यों लगते हैं डिसीजन में, उससे बढ़ावा मिलता है लोगों को जो चोरी करते हैं या धोखा देते हैं। तो ये भी एक फास्ट कोर्ट सिस्टम जो अभी मैंने सुना तो है मोदी जी ने किया है, लेकिन ये बहुत ही बड़े पैमाने पे होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि हमने जो ब्रिटिशर्स से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, शायद हमको उसमें भी अपनी तब्दीली करनी चाहिए, और उसके बारे में भी सोचा जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। अम, आपने तो बता तो दिया कि चेंजेस इन इंडिया में इम्प्रूवमेंट के कैसे क्या होने चाहिए, कैसे होंगे, ये भी, इस पे भी आपने चर्चा करी। अब मैं ये चाहती हूँ कि विश्व गुरु कैसे बनेगा हिंदुस्तान, क्योंकि आज मैं ये बिलीव करती हूँ कि 21st सेंचुरी इंडिया सेंचुरी है। हिंदुस्तान, मैं सरप्राइज नहीं होंगी अगर अमेरिका से भी आगे चला जाए, becomes the number 1 in the world। और ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने कहा हमारे पास ब्रेन पावर है, और बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। तो कैसे हम लोग विश्व गुरु बने? पहले तो बात यह है कि भारत के पास जो कुछ एसेट्स है, हाँ जी, पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल एसेट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। देखिए, आज एक भारत की कन्या जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर कॉन्टेस्ट कर रही है। सही बात है, कमला हैरिस। अमेरिका की कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 4 भारतीय हैं, हाँ जी, और सीनेट में 1 भारतीय है इस वक्त। हम्म, ठीक है, हम्म, देश, पूरे दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जहां पर भारतीय वंश के लोग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या वहां के मुखिया है इस वक्त। हम्म, वो सूरीनाम में है, वहां के जो प्रधानमंत्री है वो भारत वंश के हैं। गयाना के प्रधानमंत्री भारत वंश के हैं इस वक्त, इरफान अली। सही बात। सिंगापुर की जो राष्ट्राध्यक्ष है याकूब हलीम, महिला है भारतीय वंश की। हम्म, तो पोर्चुगल के जो प्रधानमंत्री है कोस्टा, इंडिया के भारत के गोवा से है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में इतनी टैलेंटेड कम्युनिटी नहीं है कोई कि जिनके 5, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ भारत वंश के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसके 5 प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक्चुअली रूल करते हो। तो यूनिक बात है। और करीबन 1960 से आज तक देखा जाए तो कम से कम 30 प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज हैव बीन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हाँ जी, हमारे लोगों को भी ये पता नहीं कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है। आज दुनिया के अलग अलग देशों के पार्लियामेंट में 200 से ज्यादा लोग, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भारत वंश के हैं। हाँ जी,
सैकड़ों ऐसे म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन्स है जहां पर वहां का मेयर जो है वो भारतीय है। सही बात है। अमेरिका में आप जानते हैं कितने सारे असेंबली मेंबर्स स्टेट में अब भारत से है। भारत पंछी। चाहे बिजनेस की बात ले लीजिए, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला हो या एडोब हो, अरविंद कृष्णा। ठीक है, अभी रिसेंटली हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन भी फिर मिस्टर दातार हो गए। सही बात है। कितने सारे बफेलो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट इंडिया ने, कितने सारे यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट है। सही कह रहे हैं। एंटरटेनमेंट में हाँ जी। मतलब प्रियंका चोपड़ा से अक्षय कुमार तक और अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान तक, हर इन सबको दुनिया जानने लगी है। एंड इवन म्यूजिक फील्ड में एआर रहमान। म्यूजिक फील्ड में यस, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन विजय सिंह और फिजी में गोल्फ के जीपीए के 29 टूर्नामेंट्स उन्होंने विन किए, जीत की। बिल्कुल। अब ये मुश्किल ये है कि हमारे लोगों ने ही अभी इसको समझा नहीं है कि ये हमारे पास इतना बड़ा एसेट है कि गुरु होने लायक क्षमता रखने वाले लोग हमारे पूरे दुनिया में हैं। कितने हैं? 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग हैं हमारे। हाँ जी। मैं उनको 3 करोड़ भारत के राजदूत विदेश में इस वक्त मौजूद है ये समझता हूँ। सही बात। मैं समझता हूँ कि इनको हमको एम्पावर करना चाहिए। इनको हमारे भारत की अच्छाइयां हो, भारत की जो स्ट्रेंथ्स है उनको समझाना, उनके स्ट्रेंथ्स का भारत के लिए उपयोग करना। हाँ जी। बिकॉज विश्व गुरु जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी वैल्यूज की जो स्ट्रेंथ है उनकी तरफ हम पहुंचाएं। सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ जो है वो डाइवर्सिटी है। इतनी डाइवर्सिटी शायद दुनिया में कहीं ना हो। आपको एक ही मैं उदाहरण बताता हूँ कि भारत की साहित्य अकेडमी जो है वो 22 भाषाओं में किताबें पब्लिश करती है। वेरी गुड। इंडियन साहित्य अकेडमी पब्लिशेस बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस। कौन सा देश है जिसके पास इतनी भाषाएं हैं? कोई नहीं है। दुनिया की 50% भाषाएं जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। आप पुराने हमारे, आई एम नॉट अ पर्सन हु ग्लोरीफाइज द पास्ट, लेकिन पास्ट में जो अच्छा है उसको हमको समझना भी जरूरी है, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। सही बात। हमारे यहाँ पाणिनि हुए हैं जिन्होंने व्याकरण शास्त्र पहली बार बनाया दुनिया में। हमारे यहाँ वात्स्यायन हुए हैं जिन्होंने कामसूत्र के बारे में भी बता दिया। हाँ जी। भरत मुनि हुए हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र के बारे में बता दिया है। चरक जो है उन्होंने आरोग्य शास्त्र के बारे में, मेडिकल साइंसेस के बारे में बताया है। बिल्कुल सही। और आप गहराई में जाओ, हर शास्त्र के बारे में हमारे यहाँ, जिसको बॉडी ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। लोग शेक्सपियर को जानते हैं लेकिन कालिदास का मेघदूत नहीं जानते। पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं। संस्कृत हमारी इतनी सुंदर भाषा है, इतनी अद्भुत भाषा है। तो ये हमारी जो क्या हो गया कि जब 150 साल ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया तो हमारा मेंटल जो है स्लेवरी भी उसके साथ, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी भी आ गई उसके साथ। तो हम अपनी अच्छाई को भी भूल गए। तो हम अपनी अच्छाइयों को दोबारा एक बार देखना जरूरी है। हमारे यहाँ इतने बड़े गणिती हुए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जीरो बोलते हैं, जीरो जो एस्टेब्लिश हुआ था, जो भारत ने दिया है दुनिया को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल भारत से अरब कंट्री में चला गया, वहां से पूरे यूरोप में चला गया और दुनिया में आज। आप सोचिए अगर हम एक जीरो के एक इस्तेमाल पे हम 1 सेंट चार्ज करें दुनिया को, हाँ जी, तो हमारी पूरी गरीबी नष्ट हो जाएगी। सही बात है। तो हमें अपनी इंटेलेक्चुअल पावर की अभी भी जो है पूरी कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। करेक्ट। इसलिए हमारे लोग जाके बाहर बिल्कुल टॉप लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन हम उनका भी इस्तेमाल पूरी तरह से अपने देश के लिए नहीं कर पा रहे। तो पहले मैंने मुद्दों में डिस्कशन करते समय जब हमारे थोड़े से मैंने कुछ दोष बताए, अगर वो दोष हम नष्ट कर पाए तो हम बहुत आसानी से विश्व गुरु बन सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर्यावरण के बारे में भी हम बहुत सोचने वाले लोग हैं। प्रकृति और पुरुष ही मानते हैं हम, स्त्री और पुरुष को। ठीक है ना? तो प्रकृति और पुरुष का इकट्ठा होना, द्वैत अद्वैत में हम उसका विचार करते हैं। तो भारत के लिए एनवायरनमेंट के साथ रहना
ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको हमको खुद को प्रैक्टिस में लाना चाहिए और फिर हम दुनिया को बता सकते हैं। आई थिंक मुझे बड़ी खुशी है कि मोदी जी काफी आगे इस बारे में काम कर रहे हैं कई चीजों में, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से वो इस चीज को भी बहुत ज्यादा महत्व दें कि इस चीज का मार्केटिंग क्यों नहीं हुई है। अभी उन्होंने कहा है कि विदेश में सारे न्यूज मीडिया भी इंटरनेशनली एक्टिव हो जाएं। मैं सोचती हूँ कि विदेश में मीडिया के थ्रू और जो हमारे इनक्रेडिबल इंडिया है उनको सिर्फ कल्चर एंड आर्ट्स को नहीं लेके आई थिंक ये मुद्दे भी लेने चाहिए, बिकॉज इंडिया इज इनक्रेडिबल। और उससे ज्यादा इनक्रेडिबल है हमारे नामदेव वंशी ध्यानेश्वर मूले जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको पासपोर्ट मैन क्यों कहते हैं? क्या चेंजेस किया आपने सिस्टम में जिससे कारण हमारे नामदेव वंशी को पासपोर्ट मैन कहलाए जाते हैं? और उससे पहले मैं बताना मुझे ये भी बताइएगा कि आपके मेजर अकॉम्प्लिशमेंट एज अ डिप्लोमेट और सीनियर ब्यूरोक्रेट क्या क्या रहे हैं बिसाइड्स बीइंग अ पासपोर्ट मैन? उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो बहुत अच्छी बात की है, उसके बारे में उसका जिक्र करना जरूरी है कि योगा को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्थापित कर दिया। हाँ जी। योग को 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिन मनाने पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरी जनरल असेंबली 175 से ज्यादा सदस्यों ने आवाजी मतलब वॉइस वोट से उसको मंजूर कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है और आज हिंदुस्तान का एक तरह से कंट्री ऑफ ओरिजिन योगा जो है पूरी दुनिया जानती है। और ये एक ही ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो है तीनों का संयोग होता है। तो एक बहुत अच्छी बात मोदी जी ने विदेशों में की है और भारत का नाम ऊंचा किया है। पासपोर्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने देखा कि जब मेरे पिताजी और माँ को पासपोर्ट निकालना था तो उनको गांव से 500 किलोमीटर आना पड़ा। मुझे जापान से पासपोर्ट ऑफिस फोन करना पड़ा, उनको 3-4 बार धक्के लगाकर जाना पड़ा और फिर उसके बाद पासपोर्ट। मैंने कहा कि ये हर माता पिता का ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। तो 2 चीजें करी, क्योंकि 2 नुक्स थे उसमें। एक थे कि एक्सेस टू पासपोर्ट ऑफिस, लोगों को 1000 2-2 हजार, मतलब इंदौर के लोग भोपाल चले जाते थे, लातूर के लोग नागपुर चले जाते थे। तो इस तरह से एक समय था कि बेलगाम के लोग जो है चेन्नई चले जाते थे। सही बात है। तो ये जिसको मैं बोलता हूँ कि एक्सेस टू पासपोर्ट ऑफिसेस। तो अब पहली बात तो हमने ये की कि 2 साल में करीबन 450 कार्यालय भारत में खोल दिए जहां पर पासपोर्ट इशू होते हैं। हाँ जी। इसका मतलब है जहां जहां डिस्ट्रिक्ट है या लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर चुनाव क्षेत्र में हमने एक पासपोर्ट ऑफिस इस वक्त खोल दिया है भारत के पूरे भारत 2 साल में। और दूसरी बात जो इससे भी महत्वपूर्ण है, वो हमने उसकी जो क्राइटेरिया थे उतने कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बना के रखे थे, उसको हमने चेंज कर दिया। जैसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में था, हाँ जी, एड्रेस के बारे में था, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में था, अनाथ आश्रम के जो बच्चे होते हैं उनके पासपोर्ट के बारे में था, जो डाइवोर्सी महिला या पुरुष होते हैं उनके लिए बहुत कठिन था, उनके जो बच्चे होते हैं उनको कंपलसरी था कि माँ बाप दोनों का नाम लिखे। हाँ जी। इन सब चीजों को हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्स की संख्या करीबन 16 से 20 तो थी, तब भी वहां के अफसर जो है वो और डिमांड करते थे कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत करप्शन भी था। बिल्कुल था। तो हमने इस सब को कम करके आज के दिन में मैं आपको बता रहा हूँ वास्तविकता, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और चुनाव मतदाता आइडेंटिटी कार्ड, ये 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं, तो आपको पासपोर्ट हिंदुस्तान में आसानी से मिल सकता है। पहले जो 20-20 डॉक्यूमेंट्स लगते थे उसके बजाय आज के दिन में 3 चाहिए। अच्छा, जिस बच्चे के माँ बाप ने डाइवोर्स लिया है वो बच्चा डिसाइड कर सकता है कि मैं माँ का नाम रखूंगा या पिताजी का नाम। वेरी गुड। ठीक है। अनाथ आश्रम के बच्चे को ये किया है कि अगर अनाथ आश्रम रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड वो संचालक जो है, डायरेक्टर है उस अनाथ आश्रम के, वो सर्टिफाई करते हैं तो उसका नाम, वो डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस जो भी है वो एक्सेप्ट किया जाता है बिना कुछ प्रश्न पूछे। ये ऐतिहासिक है, मैं बताता हूँ आपको।
बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ऐसा। इन लोगों को पासपोर्ट मिल ही नहीं सकता था पुराने सिस्टम में। पासपोर्ट लेना एक ऐसा काम था जैसे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना। सही बात है, सही बात है। उसको मैंने इतना आसान कर दिया कि आपके अपने पड़ोस के गार्डन में जाने वाला आसान काम कर दिया, उतना आसान मुझे था। याद है कि जब मेरी शादी हुई थी 45 साल पहले, मैं यहाँ आई थी अमेरिका में, और मुझे 6 महीने लगे थे मूले जी पासपोर्ट। देखिए पहले देखिए तो मतलब फॉर्म भरा, उसके बाद 2 महीने बाद पुलिस घर पे आई और सब कुछ, मतलब हम तो चीफ मिनिस्टर साहब को जानते थे, भैरू सिंह जी शेखावत साहब को, राजस्थान के होने के नाते थोड़ा उधर से अप्रोच लगाई, थोड़ी इधर से, तो फादर की बेटी यहाँ आ पाई। तो आपने जो सही किया है। वो बिल्कुल सराहनीय है, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ पूरी कम्युनिटी की तरफ से कि ये काम छिपा समाज ही कर सकता है, और हम छिपा ही कर सकते हैं इसको। इसका मुझे बहुत गर्व है हमारी नामदेव कम्युनिटी की तरफ से। एक बार फिर से सब तालियां फूले जी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम करा है आपने। और एक मैं समाज के कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, उससे पहले आप थोड़ा सा न्यूयॉर्क के एक्सपीरियंस को बता दीजिए, जब आप काउंसिल जनरल थे न्यूयॉर्क में। और मुझे आपसे एक शिकायत है, आप डेनवर नहीं आए उस समय, तो अब की बार आपको आएगा। आना पड़ेगा। वो कहते हैं कि कुछ अच्छी चीजें पीछे छोड़नी चाहिए ताकि आपको जाने का दोबारा मौका मिले, अच्छा, तो हो सकता ऐसे है तो कि इसलिए मैंने मैं बिल्कुल सही कहा आपने, माधुरी दीक्षित को मैंने यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मैंने कहा एक ही माधुरी दीक्षित रह सकती है यहाँ पे, आप वापस सही बॉम्बे पधारिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूयॉर्क में मैंने 2-3 बातें की, मतलब मेरा ये रहा है हमेशा कि जहाँ जाओ वहां देख लो कि क्या अच्छा और कर सकते अच्छा। हैं। और शायद हो सकता है कि ये नामदेव की जो परंपरा में फैमिली वर्च्यूज है उसमें से शायद ये आया हो कि हम लोग किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, सही बात है। हमारे वो खून में नहीं है। तो सबसे पहले मैं हर जगह जहां जहां मैंने ज्वाइन किया है वहां पर ये सोचा है कि इस संस्था को, इस स्थल को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मैंने देखा कि हमारे काउंसुलेट के नीचे बेसमेंट, 2 बेसमेंट पूरे कागजों से भरे हुए थे, एक हॉल पूरा कागजों से भरा हुआ था। तो पहले 1.5 साल मैंने पीछे लगकर पूरा साफ करवाया काउंसुलेट, तो आपने स्वच्छ स्वच्छ मिशन। अभियान किया। काउंसुलेट जो है उसके सामने जो हमारा पासपोर्ट वीजा डिपार्टमेंट है उसको साफ करवाया। हाँ जी। 7-8 ट्रक लोड, बड़े अमेरिकन ट्रक बड़े होते हैं, वाह, तो बहुत बहुत उसमें बढ़िया। भरकर हमने जो है कचरा वहां से निकाला। ये छोटी बात थी लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी न किसी को करनी थी। दूसरा जो है, एक काउंसुलेट एट योर डोर स्टेप करके एक हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया। लोग आने के लिए डरते हैं काउंसुलेट में, हमने कहा उनका ये डर हटाना जरूरी है। सही तो बात। मैं अपने पूरे अफसरों को लेकर महीने में एक बार एक राज्य में चला जाता था। कोई भी, हमारे पास 10 राज्य थे न्यूयॉर्क के पास। हाँ जी। कभी बफलो गए, कभी पेंसिल्वेनिया गए, कभी और मैसाचुसेट्स गए, और वहां जाकर 2 दिन वहां डेरा डालते थे। अच्छा। वहां लोगों से संवाद करते थे, वहाँ के जो गवर्नर है उनसे बातचीत करते थे, मेयर से बातचीत करते थे, वहाँ की मीडिया से बातचीत करते थे, और वहाँ पासपोर्ट और वीजा का मेला भी करते थे, ताकि जो लोग अपने समस्या ले, ताकि एक जगह पे लोगों को लगे कि अरे देखो काउंसुलेट हमारे पास आई है, तो विश्वास उनके अंदर पैदा करने का एक पैदा प्रयास था। किया। तो इसको हम काउंसुलेट एट योर डोर स्टेप का हमने और ये जोर नाम शोर दिया। से अभी भी चल रहा है मुले जी, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन नहीं, के वो कि आपने ये एक सब बार तैयारी की। मैंने शुरू किया तो हमारे जो राजदूत थे उस वक्त, हाँ उन्होंने जी। बाकी लोगों को भी कहा कि आप भी इसको फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए। तो अच्छा है, ये अच्छी बात है कि लोग, अधिकारी जो है लोगों के पास जाए और उनके प्रश्न जो है समझ लें और उसके ऊपर काम करें। तो इस तरह से अनेक नए नए इनिशिएटिव हर जगह मैंने करने की कोशिश की है। So you are an innovator and idea man. Besides यस, passport man, I call you an idea man today. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो भी बदलते समय को पहचानना जरूरी है। बिल्कुल सही। अधिकारियों को भी रूल बाउंड और एक्ट बाउंड नहीं हो सकते ना। हाँ, जब आप बिल्कुल कुछ सही कह रहे हैं। अच्छा करना चाहोगे तो आपको क्रिएटिव होना ही है, इनोवेटिव तो होना ही है। करेक्ट। और इनोवेटिव और क्रिएटिवनेस जब आएगी काम में, तभी मेरे ख्याल से आप जनता की सेवा अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल। आज के माहौल में सिर्फ रूल्स होते हैं एक अनुशासन, डिसिप्लिन के लिए, लेकिन आप में यह भी क्षमता होनी चाहिए कि रूल के बाहर जाके जरूरतमंदों को आप मदद कर सकें। वो भी हमने वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया न्यूयॉर्क में कि हमारा कम्युनिटी ऑफिसर रात दिन जो है
अगर किसी का फोन आता है तो उसको अटेंड करने की भी हमने व्यवस्था की, कम्युनिटी ऑफिसर लगाकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 24 आवर्स हमारा टर्न अराउंड था हम्म, पासपोर्ट वीजा के लिए, एक्सेप्ट फॉर सम प्रॉब्लमेटिक केसेस को छोड़ के। तो ये सब बड़ी और आनंद देती है बातें, जब लोगों की मुस्कान हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने हमारे एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ। हमारा जो काउंसलर विंग था, वहां पर एक सजेशन बॉक्स था, वो 3 साल किसी ने खोला ही नहीं था। अच्छा, ओ बॉय। तो मैंने वो भी खोल दिया। तो अच्छा। छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उसमें हाँ, बड़े उसके ये अंदर बहुत बड़े महत्वपूर्ण है लेसन्स ये। होते हैं। हम्म, लेकिन ये क्योंकि छोटी सी चीज जो आप कह जनता रहे हैं की ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज सजेशन ही नहीं लोगे तो फिर सजेशन बॉक्स की जरूरत क्या है, राइट? तो ये भी एक अभियान है कि स्वच्छ अभियान कि सही आपने है। उसको भी क्लीन किया और उसको एक अच्छे उसमें कर दिया ताकि वो उसका कोई फायदा हो लोगों को। बिल्कुल लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल सोचती हूँ मूले साहब कि हमारे समाज के बहुत से लोग हैं जो कि विदेशों में जाके बस गए, कोई दुबई में है, कोई यहाँ है, कोई लंदन में है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो आपका एक्सपीरियंस है न्यूयॉर्क का, उस एक्सपीरियंस को लेके अगर हम अपने नामदेव समाज को हेल्प करें। स्टूडेंट्स कई आए हुए हैं, उन्हें मालूम नहीं कि वो कहाँ किससे बात करें, कहाँ जाएं। कॉन्सुलेट तो है ही, लेकिन अगर अपने समाज का कोई उसको एज ए गार्जियन मिल जाए, ये नहीं कि उनको उनपे बहुत कुछ करना पड़े, बट एक मॉरल सपोर्ट भी देने के लिए कोई हो, तो सोचते हैं कि ऐसी कोई अपन हॉटलाइन बनाए या ऐसा प्रोग्राम बनाए अपन नीतों के तहत कि हमारे लोगों से हम जुड़ सकें विश्व भर में। और जो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी आप कह रहे हैं, शायद वही हमारे राजदूत बन जाएं इसके लिए भी। अपने बिल्कुल समय, अपने स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई में बिजी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समय अपने समाज के लिए निकाल ही सकते हैं। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट आप कर सकते हैं अपने समाज वंशियों के साथ भी। तो मैं बिल्कुल। सोचती हूँ कि वो भी एक बहुत जरूरी है। अगर फिर से जूम कॉल हो जाए तो मुले जी आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब समाज की बात करेंगे हम। तो इफ यू डोंट चलिए, माइंड, यस हम बिल्कुल ये करेंगे। सिलसिला जारी रखेंगे। और यस थोड़ा सा मैं समाज के बारे में, क्योंकि वो ही उसी के कारण आज हम एकत्रित हुए थे। लेकिन मैं दो चीज चाहती थी आज के वेबिनार में। एक तो आप हम सबको इंस्पायर करें कि कैसे आपने ये सब चीजें की और उसकी वजह से हम जैसे लोग इंस्पायर हों कि और लीडरशिप प्रोवाइड करें अपने लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ है कि समाज में बहुत सी समस्याएं भी हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं कभी भी समस्या को समस्या नहीं समझती, मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी समझती हूँ। तो कुछ कर गुजरने की अपॉर्चुनिटी है हमारे समाज में। तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द करंट स्टार्टर ऑफ द नामदेव कम्युनिटी? उस पे आप अपने विचार रखिए। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और मैंने बहुत गौर से इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन जो मैंने अनुभव से देखा है, हमारे समाज बंधुओं को मैं मिला हूँ कई बार अलग अलग सेटअप में। हाँ जी। एक तो पहली बात है कि आपको पता ही नहीं कि ये समाज की कुल जनसंख्या क्या है, क्योंकि बिल्कुल। इस तरह से भारत में फैला हुआ है कि हम्म, किसी ने मुझे कहा 7% है भारत की जनसंख्या के, किसी ने कहा 5% है, किसी ने कहा नहीं नहीं 9 और 10% है। तो तो मुझे पता ये है 7 से 8 करोड़ कहते हैं। लेकिन हाँ मैं एक तो और बात आपको बताऊं, मेरे फादर मिश्री लाल जी नागर, उन्होंने पहल यस की थी जनसंख्या का ये करने की, कि हम लोग को पता होना चाहिए हम कितने लोग हैं, कहाँ पे हैं। तो ये करेक्ट। मोहनलाल जी छीपा जो हमारे बड़े सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पूर्णिमा जी आपको मालूम है ये आपके फादर ने पहल की थी। तो उनकी डेथ के बाद भी मैं ऐसी ऐसी बातें सुन रही हूँ मुले जी की, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो समाज की बेटी हूँ, चाहे विदेश में रहूं या कहीं भी रहूं, मुझे आगे बढ़ाना है अपने फादर के काम को। तो मैं आपके व्यूज सुनना चाहूंगी उस बारे में। जनसंख्या की बात बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। यस बिल्कुल। तो दूसरी जो चीज है मेरे कॉमन सेंस से मुझे समझ में आती है, हम्म, समाज की कुछ हमारे विशेषताएं हैं, हाँ जी। या उनको मैं कहूंगा कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर सोसाइटी, हाँ जी। ऑफ आवर कम्युनिटी। क्या है? पहली बात तो ये बहुत ही पायस और श्रद्धालु लोग हैं हमारे। सही बात है। अ, और और बहुत हार्ड बहुत ही वर्किंग है। इसको बोलते हैं गॉड फियरिंग लोग हैं। हम्म, इनके लिए जो है सही रास्ता हमेशा होना चाहिए।
गलत रास्ता नहीं जाते। इसी को मैं पायस बोलता हूँ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आज के दिन में और बड़े मुश्किल से पाई जाती है इन अ कम्युनिटी एज अ होल। तो ये एक सबसे मैं समझता हूँ कि पहली बात। दूसरी बात तो है हमारे समाज के लोग जो है दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क। मैंने अपने माँ बाप को देखा है, मैंने अपने दादा दादी नाना नानी को देखा है, बहुत ये लोग 24/7 काम करते, अपना अपना जो भी काम है। तो ये भी एक अपने आप में। तीसरी बात है कि सिंप्लिसिटी। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज दैट यू हैव गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो मैं कहता हूँ कि सबसे विरासत मुझे जो मिली है दैट इज ऑफ सिंप्लिसिटी। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिटी, क्योंकि सिंप्लिसिटी में ह्यूमिलिटी भी छुपी है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये समाज में आमतौर पे पाया जाता है। हमारे बहुत नॉन एग्रेसिव कम्युनिटी है हमारी, एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि पूरे जो परमार्थ बोलते हैं, स्वार्थ और परमार्थ, तो परमार्थ में आता है कि अनसेल्फिश जो है आप जिए, दूसरों की मदद करें, बिल्कुल गलत रास्तों पर ना चलें और भगवान का नाम जाप जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मैंने देखा है। तो इसमें क्या होता है, क्राफ्टीनेस बहुत कम आती है। लोग अक्सर जो है सीधे रास्ते पे चलते हैं और गरीब भी रहते हैं इसी वजह से। और ये भी तो इस बात अगर से इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए आपने कम्युनिटी की, तो इकोनॉमिक सिचुएशन इज जनरली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, and a very small fraction of the community is can be called upper middle class. And upper class तो बहुत ही मुश्किल से आपको लोग मिलेंगे। ये मेरा एक ब्रॉड, और इसमें मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन जो है घूमते फिरते ये ऑब्जर्वेशन है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैव ऑलवेज बीन द लास्ट प्रायोरिटी फॉर आवर कम्युनिटी, जो कि आज के दिन में जो है बहुत समझने वाली बात है कि ये अगर नहीं है आपकी प्रायोरिटी में से एक, तो आप पिछड़े रहेंगे हमेशा हमेशा। दूसरी बात यह है कि इसके और एक अंदर अच्छा ये है कि प्रोफेशनल लोग हैं हमारे। पहले तो मुझे लगता था ये क्या होता है, सिलाई तो करते हैं, लेकिन मैं लगता हूँ कि हमें एक हेरिडिटरी प्रोफेशन मिल गया है। बिल्कुल। अगर हमारे बचपन में या स्कूल डेज में अच्छे अगर गाइड होते, समुपदेशक, काउंसलर होते, तो मैं कहता हूँ कि ये तो विरासत है हमें, पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हुई विरासत है कि एक रेडीमेड प्रोफेशन हमारे हाथ में। अब हमने वो छोड़ दिया और हम अलग अलग शाखाओं में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनको इसका ज्ञान है वो इसमें आज बहुत स्कोप है प्रोफेशनली टू डेवलप। कपड़े तो हर दिन बदल रही है, फैशन हर दिन बदल रही है, और जो हाथ में हमारे लोगों के हाथ में जो स्किल है, कुशलता है, वो और जगह नहीं है। बिल्कुल। आज भी मेरे पड़ा है उससे। बिल्कुल, आज भी मेरे चाचा के बेटे जो है, वो जो प्रोसेशन के लिए जरूरत होती है, अलग अलग सिलाई के कपड़े वगैरह सब इतनी बढ़िया बनाते हैं। तो अब क्या हो गया, नई पीढ़ी को इसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं कैसे कहूं कि मैं छिपा हूं। तो मैं समझता हूं कि जो दुनिया को टाके डाल के दुनिया की नुक्स कम करने के लिए दुनिया को वस्त्र देता है, वो कितना श्रेष्ठ है शिल्पी। बिल्कुल, वो तो एक तरह से स्कल्प्टर है जो दुनिया को वस्त्र देता है और काल्पनिक आइडिया से ब्यूटीफुल चीजें बनाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें हम प्रोफेशनल जो है फोकस करें और इसमें ये मोनोपोली हम बनाएं। ये आपने बहुत अच्छा कहा। वैसे थोड़ी सी तो है राजस्थान में भी, क्योंकि एक्सपोर्टर्स हैं, कंटेनर के कंटेनर भेज रहे हैं, लेकिन एक फैशन शो अगर हम करें और मैं जरूर उसको, और अभी 1 मिनट में अगर हम ट्रेड मिशन करें जो MSME के तहत जो एक स्कीम है कि हमको विदेश में लाने के लिए अपने कारीगरों को और या अपने एक्सपोर्टर्स को एक US का टिकट देती हैं, और कुछ शायद उनके भी अपने एक्सपेंस होते होंगे, लेकिन अगर हम 10, 20, 15 लोगों को यहाँ लाएं एज अ ट्रेड मिशन, और उसके लिए हम सारी व्यवस्था करें यहाँ पे, और सबसे ज्यादा जो US में फेमस है, जैसे इंडिया में क्रिकेट है वैसे यहाँ बेसबॉल गेम है, तो उनका गेम शुरू होने से पहले मैंने कई ऐसे देखे हैं
क्योंकि हिंदुस्तान के कपड़ों की और इस टाइप के फैशन शो करते हैं, अमेरिकन उसमें और इंडियन दोनों तरह के मॉडल्स होते हैं, लेकिन वो एक सबसे बड़ी जगह है जिसमें इंस्टेंटली अपन को बहुत बड़ी मार्केटिंग मिल सकती है। तो श्योर, वो भी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाँ, और कुछ मॉल्स भी करते हैं ये चीज, जो कि मॉल्स कम्युनिटी में क्रिसमस के वक्त, आई एम सॉरी, क्रिसमस के वक्त ऐसा होता है कि बहुत से फैशन शोज होते हैं, स्टोर्स करते हैं, तो वो भी एक जगह है जब ऐसा किया जा सकता है। आप बिल्कुल बोलिए। सही है। हाँ जी, तो इसमें मैं यही कहता हूँ कि अब थोड़ा सा ओरिएंटेशन कम्युनिटी का बदलना जरूरी है, हाँ और जी, वो ओरिएंटेशन में इकोनॉमिक प्रायोरिटी, पॉलिटिकल प्रायोरिटी एंड सोशल प्रायोरिटी। करेक्ट। कल्चरली ये समाज बहुत ही स्ट्रांग है, हम्म, वैल्यू वाइज इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज। करेक्ट। आप देखिए इस कम्युनिटी में बहुत कम लोग आर caught in vices like addiction to alcohol, addiction to gambling, हाँ जी, बहुत कम है। बिल्कुल इसका एक और भी अंग है कि क्रिमिनलिटी बहुत कम है हमारे समाज में, सही जो है। मुझे समझ में आता है, बहुत कम है, होगी हाँ जी, मार्जिनल। और बेरोजगार भी कम है रिलेटिवली, क्योंकि काम करते हैं हमारे लोग। बिल्कुल सही। तो इनके फोर्स को सिर्फ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज सिंपल रीओरिएंटेशन with little higher, because we need to be ambitious, हाँ we जी, need to understand the times, changing times, and ride on it. We need to adopt better technologies, and we have to be outward looking. Trade, investment, commerce, technology, business, entertainment, media, ये जो एक नया इकोनॉमिक वर्ल्ड उभर आया है पिछले 10-20-25 साल में, इसको हमारे लोगों को ग्रास्प करना जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर जो है समाज की, वो बढ़ना जरूरी है। मैं इसलिए कहता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पावर ही सब कुछ होता है। डिसीजन मेकिंग उन्हीं से होती पॉलिटिकल शेप, नेशंस डेस्टिनी शेप्ड बाय पॉलिटिशियंस। करेक्ट, करेक्ट। स्टेट्स डेस्टिनेशन इज डेस्टिनी शेप्ड बाय पॉलिटिशियंस। वैसे समाज की डेस्टिनी भी पॉलिटिशियंस ही आज के दिन में शेप कर रहे हैं। उसमें अगर अच्छे लोग आ जाए, जो कि है हमारे समाज में बहुत सारे, तो वी कैन बी पार्ट ऑफ डेस्टिनी मेकिंग, बिल्कुल सही है। rather than remaining as only beneficiary or only recipients. हाँ जी। और इसलिए समाज में, क्योंकि अब मैंने देखा है कि हमारे नॉन एग्रेसिव होने की वजह से पॉलिटिशियन रिक्वायर्स अ सर्टेन एग्रेसिवनेस। बिल्कुल सही है। हमारे लोग आक्रामक नहीं है, वो सबमिसिव लोग हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है एक लेवल पे। लेकिन दूसरे लेवल पे इनकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाना जरूरी है, और राजनीति में हिस्सा लेना है, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, जिला स्तर पे हो, तालुका स्तर पर हो, स्टेट स्तर पर हो, या राष्ट्रीय स्तर पर हो। मैं तो चाहूंगी आप जैसे प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है लोग, क्योंकि देखिए आप, अब मुझे भी गाना याद आ गया, क्योंकि आपने मुंगेरी गाने का लाल सिलसिला शुरू कर दिया था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई बात मैं तो सपनों को बहुत बुनती हूँ मूले जी, लेकिन सपने साकार भी होते हैं। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। तो हम तो एटलीस्ट दुआ तो दे सकते हैं ना कि हमारे नामदेव वंश बने। कोशिश करके हारना कोई बुरी बात नहीं है, बिना कोशिश के हारना तो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल सही। कोशिश करना और मुझे भी एक गाना याद आ गया कि हम संग संग हैं, तो आपने आज हमारा साथ दिया, तो इस वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि शायद हमें एक वेबिनार लीडरशिप पे करना चाहिए। करते अलग से करते। जो मुझे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं, एक वेबिनार हमको एक्सपोर्टर्स और ये जो शिल्प कला वाले हैं इनके साथ करना चाहिए, ताकि वो B2B टाइप का हो, जिसमें इंटरैक्टिव सेशन हो, जिसमें हम लोग आप और मैं ही ना बोले, बल्कि उनकी समस्याओं को भी हम सुने और किस तरह उनका समाधान निकाल सकते हैं। एक मैं ऐसा भी चाहूंगी कि शायद ऐसा करें। और एक और वेबिनार में ये चाहूंगी कि जिसमें आज एक और बर्थडे गिफ्ट मांगूंगी आपसे, आपकी श्रीमती जी जो एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं दिल्ली में, उसको सरप्राइज रखूंगी मैं जब तक वो नहीं आए इस वेबिनार में बोलने के लिए। तो दिसंबर में एक विमेन एम्पावरमेंट पे मैं करना चाहूंगी, ताकि लीडरशिप रोल हमारी समाज की विमेन लें, और उससे समाज, विमेन ही घर चलाती हैं जैसे कि आपको मालूम है, तो वो अगर नेतृत्व लें इस चीज में,
अपने छोटे छोटे चीजों को छोड़ के कि पद की गरिमा को न चाह के, पर वो ये करें कि सबको साथ में लेके चलें। जिसमें लीडरशिप का नेतृत्व करने की क्षमता है वो करें, जिसमें बिजनेस की क्षमता हो वो करें, व्यवसाय में मदद करें, और जिसको समाज को इकट्ठा करने की क्षमता हो वो करें। तो आई थिंक अगर हम इस तरह डिवाइड कर लेंगे और नेतृत्व मिले आपकी श्रीमती जैसी इंसान से, तो और मैं तो कहूंगी कि इवन राखी जिसने कि 450 लोग, और माइक्रोसॉफ्ट में जब काम करती थी 2000 लोग हायर करे थे। तो अगर हमारे नामदेव कम्युनिटी में सशक्त हैं वो लोग, तो क्यों ना राखी से भी हम मदद लें, जो कि हमारे यूथ ऑफ द कम्युनिटी को भी एंगेज कर लें ऐसी चीजों में। मैं देख रही हूँ कि आप ये प्रोग्राम इतना अच्छा जा रहा है कि मैं देख रही हूँ ऑस्लो से भी हमारे साथ मोहन सिंह जी जुड़े हैं। तो ये सिर्फ यूएस इंडिया ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग, कमल वर्मा जी नामदेव वो भी जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ, सबके नाम नहीं लूंगी, हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो मैं एक चीज पूछना चाहती थी आपसे कि ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन, इनमें क्या डिफरेंस है, और इनको हम कैसे एक दूसरे को समझ सकें, ऐसी स्थिति में लाएं ताकि बड़ों का आशीर्वाद लें हम, लेकिन यंग लोग में जिनमें अभी भाग दौड़ करने की क्षमता है, वो लोग का भी हम अच्छी तरह इस्तेमाल करें अपने समाज को आगे बढ़ाने में। मैं समझता हूँ कि नए पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में काफी सारा अंतर है और इसको समझना जरूरी है। हमारी नई पीढ़ी जो है वो चाहती है कि वो हर क्षेत्र में आगे जाएं। पुरानी पीढ़ी जो है आत्मसंतुष्ट सी है, अपने काम में खुश है, 2 वक्त की रोटी मिले और थोड़ा बहुत कुछ बचत हो जाए तो लेकिन नई पीढ़ी पढ़ाई कर रही है, और ये मैं बताना भूल गया कि हमारे लोग ज्यादातर शिक्षित है आज के दिन। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके ज्ञान का उपयोग जो है उनको आगे लाने के लिए, समाज को आगे लाने के लिए किया जाना चाहिए। तो नए पीढ़ी में विज्ञान और तांत्रिकी जो है, टेक्नोलॉजी और साइंस, शिक्षा में आगे है। वो सोचते हैं कि हम लोग बहुत कुछ करके दिखाएं और आगे आ जाएं। They are perhaps little less religious and spiritual also because of the modern times are impacting them also. और धीरे-धीरे they want to also look for economic progress and prosperity. और कुछ एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं हमारे कम्युनिटी में भी अलग-अलग जगह पे। तो मुझे लगता है कि पुरानी पीढ़ी की मैंने जो वर्णन किया कि पायस है, डिवोटेड है, आत्मसंतुष्ट है, प्रोफेशनल है, लेकिन इकोनॉमिकली एम्बिशियस नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री नई पीढ़ी इस ट्रैप से जो है मुक्त होना चाहती है। सही बात। इट रियली वांट्स टू फ्लाई। तो मैं समझता हूँ कि जरूरी है कि कुछ वर्च्यूज और वैल्यूज हमारे जो पुराने हैं वो हम पकड़ के रखें। प्रोफेशनलिज्म, पायसनेस, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, और कुछ जो है थोड़ा एग्रेसिव, इसका मार्केटिंग। आजकल तो ब्रांडिंग का समय है, तो एक मॉडल कम्युनिटी बन सकती है, एक क्षमता इसमें है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि नामदेव कम्युनिटी की ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक आइडियल कम्युनिटी, एक मॉडल कम्युनिटी, आइडियल कम्युनिटी, इसको हमें पेश कैसे करना है और ब्रांडिंग इसकी कैसे की जाए। अगर हमारे समाज में इस चीज में कोई सशक्त है तो आगे जरूर आइए, क्योंकि आगे मुझे भी बताएंगे कि कैसे हम अपनी कम्युनिटी में एक ग्रुप सा बनाएंगे। तो उससे पहले कि आप ये करें, मैं ये चाहूंगी कि एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं यहाँ हूँ बहुत दिनों से और मैं देख नहीं पा रही हूँ इसको, यूनिटी हमारी कम्युनिटी में कैसे की जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। और शायद आप इसमें मार्गदर्शन करें तो हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा फायदा इसी से होगा। अगर आप हमको बताएं कि हमारी कम्युनिटी कैसे यूनाइट हो। तो मैं आपको एक बताऊं तो शायद आपको खुशी होगी कि कोई कम्युनिटी पूरी यूनाइटेड नहीं होती। ये तो विश्व में है, ये सब विश्व में है। आप देखिए विदेश में, भारत में जाइए, यूके में जाइए, हमारे भारतीय समुदाय में भी इतने सारे ये है, बट खैर वो बात अलग है, मतभेद होता है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी के प्रोग्रेस के लिए हम कैसे यूनाइट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम
5 ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करें हाँ जी, और उस पे पूरे हमारे कम्युनिटी को उस पे हम इकट्ठा करें, अलग अलग स्पेशल आई वुड से स्पेशलिस्ट सब ग्रुप्स बनाएं। बिल्कुल कोई एक सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करे, एक हाँ जी, एजुकेशन पे फोकस करे, एक बिल्कुल हेल्थ सर्विस पे फोकस करे, एक जो है राजनीतिक लीडरशिप पे फोकस करे, और बिल्कुल एक कल्चरल मैटर्स, स्पिरिचुअल मैटर्स जो है हमारे, विच इज आल्सो स्ट्रेंथ ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये बहुत 5 अच्छा ग्रुप जो है वो अभी क्या हो गया है कि 99% ऑफ द फोकस इज ऑन रिलीजन, रिलीजियस एक्टिविटीज, फेस्टिवल, पंचांग और अदर थिंग्स, पूजा अर्चा। तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह ठीक है, उसको मैं गलत नहीं समझूंगा, लेकिन ये रीओरिएंटेशन जो है वो हम अपने ही गुण जो है उनको इस तरह से सामने लाए दुनिया के जो हाँ है जी, हमारे पास, और उसमें हम विकास के अवसर हमारे लोगों को बताएं। अगर और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, एजु अपने पूरे विश्व में है नामदेव समाज। बिल्कुल 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 तो मैं नहीं, एक जैसे अभी इकोनॉमिक, मैं जब कोशिश कहता कर हूँ रही हूँ कि इकोनॉमिक, हाँ जी बोलिए। इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रोग्रेस, उसमें ये भी आता है कि कई जगह पे हमारे कम्युनिटी को ओबीसी स्टेटस मिला है, हाँ जी, उनको एग्रेसिवली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आगे आकर ट्रेनिंग देने के लिए एक संस्था भी हम बना सकते हैं, बिल्कुल हमने सोचा है कि चाहे वो नीतो इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे। करेक्ट करेक्ट, तो ताकि इसको प्रोत्साहन मिले, कुछ लोगों को हम स्कॉलरशिप दे जो हाँ, काबिल है, नीडी काबिल है और नीडी है, काबिल और नीडी नीडी दोनों होना चाहिए, दोनों होना सिर्फ चाहिए। नीडी नहीं होना चाहिए, सिर्फ काबिल नहीं होना चाहिए, दोनों का करेक्ट, कॉम्बिनेशन हो। हाँ। सिंस आपने ये सो बोला है, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी व्हाट्सएप पे, किसी ने भेजी, किसी बच्चे ने जो कि स्टूडेंट है, उसने ये कहा कि पूर्णिमा जी आपके वेबिनार इतने दिन से मैं देख रहा हूँ और मैं जुड़ना चाहता हूँ, जुड़ नहीं पाता क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, फोन भी नहीं है, क्या आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं? तो उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे, क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, IBM जैसी, जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। और राजस्थान में भी यूनिवर्सिटी में एक ने शायद $38 का लैपटॉप बनाया था। तो हम आप, मैं जान रही हूँ कि आप उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन आया मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूं। मैं समझता हूँ कि जो सोशल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ वो वो एक ये सब कर, कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड भी बनाए, वेरी गुड। जिसमें जैसे जो भी डोनेशन देना चाहता है एक सेंट्रल पूल में वो हाँ आए जी, हाँ जी, और वहां से एक कमिटी हो, हम्म, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आवेदन मंगवा के, हाँ जिसको जरूरी है, और वो डजंट हैव टू बी ओनली स्कॉलरशिप नेचर, इट कुड बी स्टार्टअप्स के लिए, हाँ जी, स्किल इनोवेशन कोई कर रहा है उसके लिए, डेवलपमेंट, हाँ कोई हाँ विशेष चीज के लिए प्रोसेसिंग करना चाहता है, कोई पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, हाँ, जिसमें इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक एलिमेंट हो, ऐसी कोई भी चीज हो उसको हम प्रोत्साहन दे। यूपीएससी हो, हाँ स्टेट जी, की पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसके लिए कोई थोड़ा सा असिस्टेंस चाहता है जिसने फर्स्ट बैरियर क्रॉस किया हो, तो ये सब चीजें जो है इसको कम्युनिटी वेलफेयर फंड का कंसेप्ट बना के उसके अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर उसको हम रियली ये कर सकते हैं। जो भी रिच है यहाँ पर, अमीर है बाहर भी भारत के, वो इसमें इस फंड में सेंट्रली अपना जो है योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो हम छोटे छोटे चीजों के लिए झगड़ते रहेंगे, छोटे लीडर्स के पास जाके हम फेवर मांगते रहेंगे, कब तक दर दर हम भटकेंगे। मैं समझता बिल्कुल, हूँ कि ये सोशल कमिटी करें, इकोनॉमिक कमेटी करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अवसर क्या क्या है, जो आपने एमएसएमई बोला, प्रोफेशनलिज्म की बात है, फैशन हाउसेस टू बी एस्टेब्लिश्ड है, करेक्ट, यू नो, इतने सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आज देश में खुल रहे हैं, हर दिन प्रधानमंत्री नए स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, उसका बेनिफिट कम्युनिटी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई हमें मालूम मशीनरी नहीं है नहीं हमारे। है। तो मैं चाहूंगी कि इसमें भी थोड़ा सा आपका नेतृत्व हमें मिले, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप पास करेंगे तो हम नीतो के मेंबर्स को जरूर ये सब शेयर करेंगे। और शायद एजुकेशन ही एक तरीका है जिससे हम अपने व्यावसायिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो हमें बिल्कुल अपने समाज को एजुकेट करना है कि क्या क्या अवेलेबल है, और उसके लिए आपका सबसे बड़ा हाथ होगा उसमें। और इंडिया बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे मैं कह रही हूँ 21st सेंचुरी को लीड इंडिया करेगा। शायद इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर पूरे एशिया में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये भी जानना हमारे समाज के एक्सपोर्टर्स के लिए जरूरी है।
इसमें, इस प्रोग्रेसिव इंडिया में, इस न्यू इंडिया में आप बताइए हमारी कम्युनिटी कैसे आगे बढ़े? मैं समझता हूँ कि अगर हमारा कम्युनिटी की स्ट्रेंथ 7% है, हाँ जी, तो हर जगह 7% कम्युनिटी के पास होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, ज्यादा ही होना इस चाहिए मेरे हिसाब से। इस देश की जो संपत्ति है, वेल्थ है, हाँ जी, उसमें 7% कम्युनिटी को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए सक्षम एक मैकेनिज्म हमें बनाना है। हाँ जी, मतलब वो चाहे एजुकेशन में हो, हेल्थ सर्विसेज में हो, पॉलिटिकल लीडरशिप में हो, वो एक बार और दूसरे स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हाँ जी, ये कमेटी जो है वो सब कमिटीज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो सकती है अच्छा, अपेक्स में, लेकिन टॉप में हमें 15 या 20 लोग जो है बिल्कुल डेडिकेटेड है और बिल्कुल जिनका इंटरेस्ट ये नहीं कि मुझे पद चाहिए और मुझे नाम बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। वो डेडिकेटेड इंटेलेक्चुअल्स हो उसमें और इकट्ठा काम करें। हाँ और उसके अंदर जो है आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बना सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो, शुरू में डिवीजन के डिवीजन वाइज हो, 5-6 डिस्ट्रिक्ट मिलके एक डिवीजन हो, लेकिन जहाँ संख्या ज्यादा है वहाँ डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स भी आप बना सकते हैं। हाँ जी, और क्योंकि दोनों भी है, हमें ग्रास रूट भी टच करना है और हमें अपर क्रस्ट जो है उसको भी टच करना है, क्योंकि रिसोर्सेस आर अवेलेबल विद द टॉप 5% पीपल and 90% people are really struggling to बिल्कुल get सही। opportunities, to get information, to get those to see those gates which they can open for हाँ their जी, own progress. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है, जो कि हम इन आवर ओन वे वी स्टार्टेड सम कमिटीज, पर उनको हम ये सब कुछ तैयार है प्लेटफॉर्म जो आपको आपने जो बोला, I'm sure और बहुत इसको सारे जो लोग आपने एक इसका सुंदर सा विचार नाम करने दिया था वाले वो लोग मुझे हैं। अच्छा लगा था। तो पहले हमें लीडरशिप लेवल के लोग चाहिए जो कि वाकई में जिन्हें थोड़ा नॉलेज है, जैसे वाइस चांसलर हैं कई हमारे कम्युनिटी में, वो एजुकेशन का मुद्दा ले सकते हैं, क्योंकि उनको एक एक चीज पता होगी उस बारे में। और कैसे जो नया बिल्कुल नया अभी मोदी जी ने स्टार्ट किया एजुकेशन सिस्टम का, उसको हम यूज करते हुए कैसे अपने लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो एक वेबिनार। पर मैं ये सोचती हूँ कि मुरली जी, आपने जो कहा ना कि ये हमें एक बहुत बड़े लेवल पे ही नहीं करना है, ये छोटे छोटे लेवल पे हमको सब तरह अपने नामदेव सरपंचियों को अपने साथ नीतों में जोड़ के, और एक जो आप कह रहे हैं विलेज पंचायत लेवल पे भी करें, तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इवन मध्य प्रदेश में हमारे बहुत से लोग हैं जो कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में हैं। मैं सुनती हूँ यूपी में भी यही है कि बहुत से योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, राजस्थान में भी ये है, अशोक गोथरवाल जी, मोहन छिपा जी, ये सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और अरुण रूनवाल जी, सॉरी अनुराग रूनवाल जी, और ऐसे बहुत से हैं। तो शायद ये लोग हमें मदद कर पाए टू चैनलाइज द जो पूरे एक तरह से वेब जो हम बनाना चाहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें हम लोग को बहुत लोगों का सहयोग चाहिए होगा। और मैं ये भी अपील करूंगी आपके माध्यम से कि जिन लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट है, अपनी समाज सेवा में, अपने समाज को आगे बढ़ाने में, और निश्चल भाव से, बिना किसी पद की गरिमा के पीछे करने से, तो आई थिंक ये हम काम कर पाएंगे। और हम चाहेंगे कि आखिरी सवाल जो मेरा आपसे है कि हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा ट्रेडिशन में कॉटअप है, या और जो चेंजेस जो हो रहे हैं न्यू इंडिया के, उसके पेस में कहीं थोड़ा सा पीछे रह गई है। तो मुझे लगता है कि हमको बिल्कुल पटरी पे आने के लिए, ताकि हम लोग की प्रोग्रेशन एकदम उस लेवल पे हो जहाँ होनी चाहिए, इसके लिए भी थोड़ा सा अगर आप हमें आलोकित करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे लगता है कि एट दिस स्टेज वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ पुश। हाँ जी, लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि एक्चुअली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बहुत सारे अवसर अब उपलब्ध है बिल्कुल जो पहले नहीं थे। सही बात। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि अगर हम ये करें कि पिछले अगले 10 साल में हमारे 50 IAS अफसर होंगे, हर साल 5, आई कैन ड्रिंक टू दैट। एक इस तरह से टारगेट बनाएं हम लोग, बिल्कुल, क्वांटिटेटिव टारगेट। ठीक है, हाँ, इम्पॉसिबल होगा, शुरू में कम होंगे, लेकिन कुछ करें ना हम लोग उस डायरेक्शन। और तो आप तो टैलेंट हम, सबसे अच्छे गुरु होंगे उनके। हाँ तो हम नहीं, हमारा साथ, मेरा साथ तो रहेगा ही रहेगा। तो हाँ, नहीं मैं मुझे ये लगता है सोचती हूँ, कि
आप जो कह रहे हैं टेक्नो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं लगता कि एक सपना है, ये हो सकता है और ये उड़ान हम जरूर उड़ेंगे। मैं खुद चाहूंगी कि बिफोर बिफोर आई टेक द हेवनली अबोर्ड, कम से कम 10-20 आईएएस ऑफिसर देखूं आप जैसे इंडियन बिल्कुल फॉरेन सर्विस में भी। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा आप कि हम इस करियर में अगर कोई जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, वो क्या करना है उसे? नहीं, ऐसा है कि आज के दिन में ये जानकारी बहुत अच्छे से उपलब्ध है सब जगह। ट्रेनिंग सेंटर्स भी आजकल चल रहे हैं। हाँ जी। तो हमको यही देखना है कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसमें सहभाग ले लें, हिस्सा ले लें और कंपटीशन करें। लेकिन ये हाँ जी। जानकारी भी, क्योंकि विश्वास नहीं होता अक्सर लोगों को, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता, तो आत्मविश्वास जगाना, उनको जानकारी देना और वहां पर उस जो है कंपटीशन में उनको डालना। और उसमें अगर कोई उसको आर्थिक मदद या अगर बौद्धिक मदद की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग मैकेनिज्म खड़ा कर सकते हैं। तो वो हमारे पास इतने सारे लोग हैं, वो मेंटरशिप 10 अगर बच्चे हम चुने एक साल में, तो 10 अफसर मैं उनके साथ खड़ा कर सकता हूँ कि जो उनको 24/7 अवेलेबल होंगे मार्गदर्शन के लिए। हाँ जी, बोलिए। So far as गाइडेंस सेंटर्स आर कंसर्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अब सब जगह हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती अक्सर। तो लोग बम्बई जैसे या दिल्ली जैसे शहर आते हैं। दिल्ली में इट्स अ हब, दिल्ली इज हब फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो यहाँ बहुत सारे आते हैं। तो हम जो डिजर्विंग है उसको हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेज दें। हर कोई दिल्ली आ नहीं सकता है, लेकिन जो डिजर्विंग है 5-10 लोग, उनको भी हम यहाँ लाने की कोशिश करें। तो ये सब चीजें हो जाए तो हर साल 5 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल। और पूरे देश में जहाँ हमारे 7-8 करोड़ लोग हैं, ऐसे सुनते हैं, तो आ सकता है कुछ लोग विदेश में भी हैं, वो भी शायद हिंदुस्तान को में आके सेटल होना चाहें, तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। आपकी मूल्य जी जर्नी ही डेस्टिनेशन है। बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, बहुत और अच्छा मुझे लगा मन कर रहा है कि मुझे मैं भी। बार-बार इसको आगे नहीं बढ़ाती नहीं जाऊं, आगे लेकिन मैं नहीं, चाहती आगे हूँ कि समय। थोड़ा सा समय हम क्वेश्चन आंसर के लिए भी रखें। जो लोग पूछना चाहते हैं, बहुत तो नहीं ले पाएंगे, पर 2, 4, 5 तो ले सकते एक या हैं। दो ले लीजिए, एक या दो ले लीजिए मेरे 1 या ख्याल 2 से। ले लेते हैं आप। और समय फिर मैं चाहूंगी समय कि की कमी। ये जो आपने बातें बोली हैं, इनके बारे में हम विचार करेंगे दिसंबर तक कम से कम। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल जनवरी में मैं चाहूंगी आपको फिर से लाया जाए, ताकि फिर हम ठीक एक बहुत अच्छी तरह इस चीज को अनवेल करें। और नीतो जरूर। मैगजीन के थ्रू भी हम कई चीजें, जो हम लोगों ने नीतो बिजनेस मैगजीन खोली है, जिसके कवर पेज पे आप हैं, तो उसके अंदर भी हम ये आईएएस अफसर बनने की ये सब चीजें हम इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डालना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ये मैगजीन एक इंफॉर्मेशन सेंटर हो, ना कि एक एडवर्टाइजमेंट की चीज। इसमें बहुत सारी नॉलेज की चीजें डालें, कुछ इंस्पिरेशनल लोगों की जीवनी, और कुछ हमें ऐसी चीजें की जिससे फायदा हो। हमारे यूथ बहुत अनएम्प्लॉयड हैं मूल्य जी, उनके लिए अगर कोई संदेश है आपके पास कि वो लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस उसमें जाएं। जैसे आजकल कई चीजें, पहले इंजीनियर डॉक्टर ही बना करते थे, जैसे आपके बेटे हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो मैं आप वही क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि? मैं वही वही कहने वाला था मैं कि आज के दिन में हाँ जी। देखो, एंटरटेनमेंट है, मीडिया है, अब सोशल मीडिया भी उसमें आ गया है, जोर शोर से। एक्टिंग है, फैशन है, हाँ डिजाइनिंग है, बिल्कुल। तो करियर की कोई कमी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, मैं ये भी समझता हूँ कि ये जानकारी आज के दिन में चारों तरफ अवेलेबल भी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हमारे लोगों को थोड़ा अपने घर से निकलना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि आप जब तक घर से निकल के समुद्र नहीं देखते हो तब तक तैरना आपको नहीं आएगा। मैं ये कैसे तो लोग इंसान, हाँ बोलिए, सॉरी। तो बाहर निकल के दुनिया देखना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी का वेबसाइट बहुत बढ़िया होता है, उसमें सब जानकारी होती है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानकारी हर जगह उपलब्ध है। स्टेट सरकारें कोशिश कर रही है कि लोगों को आप आओ और ज्वाइन करो। हर साल ये एग्जामिनेशंस होती है पूरे हाँ देश जी। में। तो हमको भी थोड़ा, हम एफर्ट करेंगे, लेकिन लोगों को भी अपने आप को ऊपर उठाने के उठाने की दिशा में प्रयत्न जज्बा करना होना चाहिए, चाहिए। कोशिश करनी हाँ जी। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करने से पहले ऐसे ही एक इंसान से आपको मिलाना चाहती हूँ जो हमारी कम्युनिटी का उदयपुर से है और जिसने प्रोफेशनली भी काम किया, लेकिन फिर उसका पैशन म्यूजिक को उसने प्रोफेशन बना लिया। तो गौरव, अगर आप हो तो प्लीज आइए। Yes, yes, yes. Am I audible? Namaste, Yes, auntie. बिल्कुल, You are. नमस्ते। Hello and namaste to everyone who are on board to this webinar. And Thank you. सबसे पहले मैं बहुत बहुत thank you बोलना चाहूँगा to the host Rakhi ji and Purnima auntie who has inspired every नामदेव community member कि वो वेबिनार में आके respected ध्यानेश्वर अंकल को सुने and उनसे बहुत अच्छी बातें सीखने मुझे मिली है and I guess सभी को ही मिली है। तो मैं छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। My name is Gaurav Medetwal. I am from basically Udaipur, Rajasthan, and थोड़ी सी मेरी जर्नी बताना चाहूँगा। Presently, I am working as a full-time professional singer in Bollywood music industry, and उसके साथ-साथ I am a graduate electronics and telecom engineer. And recently, I was a first runner-up of the show India's Got Talent, जो कि Colors channel पे आता है. I had my band, musical band, and उसके बाद में I got a beautiful opportunity to work with one of the leading music directors of India, Ajay Atul ji. उनके साथ मैंने काम करके अभी ऋतिक रोशन की जो recent movie आई थी उसमें I led my voice for a song. The name of the movie was Super 30, and just going through this phase and just working on my passion. तो thank you so much, thank you so much. सुनाइए कुछ अब। Definitely. मैं आज अभी तक मैंने प्रोफेशनली कहीं सीखा नहीं है, बट इट्स जैसे ध्यानेश्वर अंकल ने कहा था कि आजकल का जो यूथ है वो एक रिस्ट्रिक्टेड वे में काम नहीं करना चाहता, वो सभी चीज में करना चाहता था। अलॉन्ग विथ माय इंजीनियरिंग आई यूज्ड टू लिसन एंड लर्न, एंड वन ऑफ माय आइडल इज मिस्टर सोनू निगम जी, जो कि लेजेंडरी सिंगर हैं। तो उनका एक गाना मैं पेश करना चाहूंगा जो कि बहुत मीनिंगफुल भी है, अभी के जो कॉन्वर्सेशन हम लोग कर रहे थे, ध्यानेश्वर अंकल जो बता रहे थे उसको एक सिग्निफाई करता है। तो आई विल प्रेजेंट दिस सॉन्ग, आई होप यू गाइस विल लाइक इट इन माय वॉइस। श्योर, प्लीज। और एक आप सरप्राइज भी देने वाले थे शायद। डेफिनेटली, वो सरप्राइज तो बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल है, बिकॉज आज पूर्णिमा आंटी का बर्थडे है, तो डेफिनेटली याद। अभी मुझ में कहीं बातें थोड़ी सी है जिंदगी, वाह, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम जब भी नीतो की कॉन्फ्रेंस रखेंगे 2022 में, उसका आपको योगदान देना पड़ेगा उसमें एक कल्चरल शो के लिए। तो डेफिनेटली, ऑलवेज रेडी फॉर इट, उसके लिए। डेफिनेटली आंटी, डेफिनेटली। एंड मैं चंद शब्द कुछ कहना चाहूंगा, लाइक मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ इंडिया एंड लाइक इंटरनेशनल कम्युनिटी मेंबर्स माइट बी नोइंग माय डैड। हिज नेम इज लेट मिस्टर सुदीप मेड़तवाल। वो उदयपुर हितकारिणी संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली जस्ट अ मंथ अगो उनका देहांत हो गया। एंड ही वाज, आई एम वेरी प्राउड टू से that he was a serving medical officer in government duty for COVID, and unfortunately ऐसी चीजें हो गई। And he has done a lot for नामदेव समाज। राजस्थान लेवल पे प्लस जो नेशनल लेवल पे जो यूथ समिति बनी है, राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ, उसके वो कोऑर्डिनेटर रहे हैं। And he has been always active to bring youth into fame and name। तो वो आगे से हमेशा से ही चाहते थे कि हमारा जो यूथ है, जैसे ध्यानेश्वर अंकल ने भी ये चीज बोली ही है कि एक जो जनरेशन गैप है वो बहुत मैटर करता है एज पर टाइम। आज के टाइम पे जो लीडर्स हैं वो यूथ अगर होंगे तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड और डाइवर्सिफाई माइंड
को इम्प्लाई करके दे विल ब्रिंग द प्रोडक्टिविटी इन आवर कम्युनिटी। तो डेफिनेटली मेरे पापा के मार्गदर्शन पे मैं हमेशा आगे रहना चाहूंगा। एंड ध्यानेश्वर अंकल, सबसे पहले आपको चरण स्पर्श, एंड थ्रू योर ब्लेसिंग्स एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन माय करियर। एंड आई वुड लाइक कि मेरे जो दादाजी रहे हैं वो बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, दादाजी एंड दादी जी, नेशनल लेवल पोएट एंड पोएटेस। एंड मुझे कहीं से पता चला ये कि आप भी पोएट हैं सर। हाँ जी, तो डेफिनेटली would like to gift you some of their books, उनकी जो कविताएं की। क्या बात, तो मैं धन्यवाद। कभी भी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल कम टू मीट यू सर। जरूर आइए, दिल्ली में रहता हूँ। आपने कहा ना मुझे सब कि हम साथ साथ हैं, देखिए बर्थडे मेरा है, गिफ्ट आपको मिल रही है। चलता है, आधा किताब आपको दे दूंगा। वेरी लकी। एंड अंकल, मैं आपका जो लास्ट जो फेसबुक पे आंटी ने शेयर किया था लिंक, तो मैंने वो इंटरव्यू देखा था वेयर लाइक मुझे पता लगा द ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। एंड ट्रूली एज एन आर्टिस्ट इवन आई बिलीव इन पॉजिटिव वाइब्स एंड द पॉजिटिव वाइब्रेशन। एंड दिल से मैं सर बोलना चाहूंगा कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, मैं उस मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी उससे जुड़ना चाहूंगा। तो सर आप प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। would love to connect and would love to guide जो भी अपग्रेडेड जो भी अपकमिंग सिंगर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं जो अपने कम्युनिटी में से आगे आना चाहते हैं। मैंने ज्यादा कुछ हासिल किया नहीं है, बट अभी तक जो भी किया उसके बेस पे डेफिनेटली आई एम देयर टू गाइड देम इन अ पॉजिटिव वे। तो सर मैं जुड़ना चाहूंगा उससे, आप प्लीज मुझे बताइए, है ना, सारी चीजें। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपके पिताश्री ने जो योगदान दिया समाज को, हम सारा समाज आपके साथ खड़े हैं। आपके देश में एक माँ के रूप में मैं हूँ और इंडिया में ज्ञानेश्वर जी हैं। तो ज्ञानेश्वर जी बिल्कुल सौभाग्य, मेरा बड़ा सौभाग्य। बेटे भी म्यूजिक में हैं, तो हम दोनों तो आपके लिए खड़े हैं पेरेंट्स बनके, लेकिन पूरा समाज आपके साथ है। कभी अकेला महसूस मत करना, ये हमारा वक्त है तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए। बिल्कुल सही है। हाँ, तो यही तो पॉजिटिविटी है। बिल्कुल एक दूसरे को सहारा देना, मदद करना, वही समाज है। बिकॉज मैंने जिस वक्त ये वेबिनार ज्वाइन किया है तभी से मैं अभी तक जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स सुनता आ रहा हूँ जो ध्यानेश्वर सर एंड आपने डिस्कस करे हैं सभी के लिए, तो उन मतलब इट वाज नॉट कि एक जस्ट फॉर नॉलेज बेस वो चीजें नहीं थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक लेमैन भी वो चीज सुनता तो वो प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पाता है एंड वो आगे बढ़ पाता। तो वी ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू थैंक यू बोथ कि हमें इतना कुछ अच्छा कुछ सुनने मिला। एंड वी वुड लव कि आगे भी कभी हमें ये मौका मिले कि हम लोग बहुत अच्छी चीजें सीख पाए एंड गाइडेंस मिले हमें सबको। अच्छा, कुछ सुनाना है तो सुनाइए, वरना या मैं कविता सुनना चाहूंगी। There's a surprise for Poonima auntie. उनका जैसे आज बर्थडे, तो would like to sing 2 lines for her and on behalf of everyone. बस 2 lines ही, समय कम है। Yes. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Wishing you a very happy birthday, auntie. May God bless you with all the best of happiness. I'll go back to Muleji now and quickly want to hear a poem from you, Muleji. एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। मतलब म्यूजिक अगर फील्ड की बात की जाए तो मैं 2 लाइन लास्ट डेडिकेटली करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, बिकॉज दिस सॉन्ग हैव अ ब्यूटीफुल मीनिंग और वो आज की शाम को मेरे ख्याल से कंक्लूड करता है। तो विल जस्ट सिंग 2 लाइंस ऑफ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं। आई होप यू वुड लाइक। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो,
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। Thank you so much everyone, thank you so much, Thanks to you बेटा। thank you so much. एंड अब हमारे पास बिल्कुल खत्म होने का टाइम आ रहा है। मूले जी, अगर आप अपनी कोई कविता Yes. पेश करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एक आपका भी ये क्योंकि आप कहते हैं कि आप शायद गाना नहीं चाहते, तो एक कविता ही सुना दीजिए आज। उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस लेंगे। तो और मुझे मैं ये लगता बोलना है कि चाहूंगी समय बहुत हुआ है हाँ जी। और कविता को अगली बार रखते हैं। आपके एक जो 2 प्रश्न है उन्हीं को ले लेते हैं, और क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे अच्छे संगीत के बाद मुझे शायद महफिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई आपके सालगिरह पर। और अगर प्रश्न है एक आध ले लेते हैं, क्योंकि वास्तव में काफी समय हो चुका है। मुझे एक 9 हो बजे जाएगा और फिर एक से, और इसके बाद हम सेमिनार है, वापस नहीं जुड़ेंगे। 9 बजे एक और सेमिनार है मुझे। हाँ, हाँ। तो और मैं चाह रही थी 2-4 कि इसको मिनट रह यहीं गए। समाप्त करें। थोड़ा सा 2-4 मिनट का टाइम है अपना। तो सबसे पहले तो मैं, मेरे परिवार के 2 लोग जुड़े हैं आज इस वेबिनार में, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बर्थडे गिफ्ट है। चंद्रेश नागर मेरे भाई, और सुधा नारायण मेरी छोटी सिस्टर। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। और अब किसी के जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज आइए सामने। बहुत ही संक्षेप में करिए ताकि मूले जी जवाब दे सकें, और हम 2 या 3 ही लोग ले सकते हैं, तो प्लीज डोंट माइंड। अगली बार मूले जी को हम कम से कम 1 घंटा क्वेश्चंस पूछेंगे। बिल्कुल ठीक है। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? या उत्तम जी। उत्तम जी बोलिए। सीईओ तो हमारा पार्टनर है। थैंक यू सीईओ। मुझे साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम लोगों को यूपीएससी एमपीएससी की ट्रेनिंग के लिए बच्चों को तैयार करना है, तो ये हम लोग सोलापुर में एक कैसा बना सकते हैं प्लेटफॉर्म कि जिसमें पूरे हिंदुस्तान से बच्चों की पूरी हम लोग सहायता कर सकते हैं, और एक ऐसा सेंटर बनेगा ये जो भी नामदेव समाज का है और प्लस अदर समाज का भी उसको यूटिलाइज होगा। उसका एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है यूपीएससी एमपीएससी एंड अदर बिजनेस ट्रेनिंग के हिसाब से। अभी क्वेश्चन पूछिए उत्तम जी जल्दी। हाँ नहीं, उसमें अगर ये हम लोगों को ये प्रोजेक्ट करना है तो इसमें बाहर के देशों से और अपने देशों से भी कुछ गवर्नमेंट के अंडर प्लानिंग में हम लोगों को कैसे टाइप से मदद मिल सकती है इसमें? मूले जी नहीं, ऐसा है हर यूनिवर्सिटी में एक इस तरह का सेंटर मौजूद है आज के दिन में। ऐसी जगह होनी चाहिए इस सेंटर की जहां पर लोगों को आना जाना आसान हो, पहली बात। दूसरी बात है कि वहाँ इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि जो प्रोफेसर्स है। हमारे 20 साल को कवर कर रहा है आपने इसमें, और इतना ज्ञान आपने दिया। वाकई में आपका नाम, आप ध्यानेश्वर भी कहते हैं, कुछ लोग आपको ज्ञानेश्वर भी कहते हैं, पर मैं ज्ञानेश्वर कहूंगी आज, क्योंकि वाकई में आपने इतना ज्ञान दिया है हमारे समाज की, इससे बहुत उन्नति होगी। और मुझे, मेरा पूरा विश्वास है, और आपका जो साथ मिला है उसके लिए बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, और बहुत बहुत कृतज्ञ भी हूँ कि आपने अपना साथ दिया। और मैं यहाँ बैठी हूँ काफी 10,000 मील दूर, लेकिन आप वहाँ हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि समाज के बारे में आप मुझे गाइड करते रहेंगे, और थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटीज जो आप में हैं और हम में हैं, इंडिया यूएस की मिला के हम अपने समाज को सामने लाएंगे। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे ज्वाइन करिए टू थैंक ध्यानेश्वर जी। और आगे हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आगे, और प्लीज इन कमिटीज के लिए आगे आए, बिकॉज हमें हर तरह के लोगों की जरूरत है, चाहे वो नौकरियां दिलाने में जरूरत है, चाहे वो और चीजों में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में। इस कोविड के टाइम पे गौरव को मैं थैंक्स करूंगी कि उस इतनी क्षति पहुंचने के बावजूद वो आया और उसने अपने साथ ये शेयर किया। और सच में जो आखिरी गाना गाया वो मेरे दिल को इसलिए छू गया क्योंकि कोविड का टाइम है, हमें नहीं पता कि हमारी मुलाकात ये आखिरी है या हम और मिलेंगे। लेकिन जैसे ध्यानेश्वर जी मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी कहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम सब इस कोविड से जीतेंगे
और फिर मिलते रहेंगे। और हमेशा हमारा वेबिनार नीतू का महीने में एक बार होता है, क्योंकि समय की कीमत जानते हुए सभी बिजनेसमैन बिजी हैं और सभी हमारे समाज के लोग बिजी हैं। ज्ञानेश्वर जी, अगर आप कुछ आखिरी शब्द कहना चाहें तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोगों से बोलें। नो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपका आज तो सालगिरह भी थी, लेकिन ये जो संवाद का मौका मिला मुझे, वो मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा करना एक ही प्लेटफॉर्म पे वो कोई आसान बात नहीं है। आपने ये किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कोशिश की हुई है आपने लोगों तक पहुँचने की। और ये भी मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज के सामने हैं और जो चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन एक प्रोग्रेसिव पाथ हमारे लिए उपलब्ध है और उस पे हम आगे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मॉडर्न एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, good health services, lot of opportunities at all levels, starting from block level to the state, district and state and national level. इसके लिए हम अपने बढ़िया सा मैकेनिज्म और फ्रेमवर्क बना सकते हैं। कैपेबल लोग जो है वो समाज में आज मौजूद है, इंटरेस्टेड है, और पहली बार मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस of identity and desire to progress in various aspects of society, that is very much present. So hum isko let's build on this and take the whole community forward. My best wishes to all people I see have joined from so many different places. मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आपके सबके तरक्की की कामना करता हूँ। 2020 has been a difficult year. I hope that the coming year will be better. दिवाली की आपको सबको शुभकामनाएं, दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत मैं बहुत तो धन्यवाद। चाहूंगी कि आगे हम आके अगले साल अगर हो सके, आप इंडिया तो कोविड का वो बना रही हैं, तो हो सकता है हम लोग अगले साल मिलें दिल्ली में। और इसकी शुभकामनाएं, और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं नीतो की तरफ से। और आप सब जुड़े, आपके सहयोग से ही नीतो चल रहा है, वरना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जा सकती बिना लोगों के। और हमारे भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं मुले जी, जो ये सब कमिटीज के को ले सकते हैं। आप बस सिर्फ एक गाइडलाइन बनाइए, जिसे हम कैनवस बिजनेस प्लान कहते हैं, उसके तहत हम लोग आगे इसको काम करेंगे। और जितने भी देश विदेश से जुड़े हैं उन सबको मैं नमन करती हूँ कि उनके बिना ये काम नहीं हो सकता। ये एक कम्युनिटी की यूनिटी से ही ये काम आगे बढ़ेगा। और नीतो जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लेटफॉर्म बन जाए, तो 5 साल का हमने सोचा था कि आप हमें गाइडेंस देंगे, लेकिन मुले जी आपने तो हमें 20 साल का काम दे दिया है। तो मुझे खुशी है कि आप भी मेरी तरह बहुत एम्बिशियस हैं और आप चाहते हैं कि जितना अच्छी चीज निकल सके हम लोगों में आके। तो जो 20 साल का प्लान आपने बताया है, उस पे हम बिल्कुल शिद्दत से काम करेंगे। और थैंक यू सो मच, आपका ज्ञान, आपका समय और आपकी आत्मीयता और आपकी जो पेरेंट्स से विरासत मिली है, सिंप्लिसिटी, आई लव दैट। थैंक यू।